Good afternoon, everyone. So I go start with the SEBI Takeover Code 2011. This is the law SEBI Substantial Acquisition of Shares and Takeovers Regulation 2011. In short, we call it the SEBI Takeover Code 2011. Anyway, SEBI Takeover Code 2011. Now, first of all, the first law which was made by SEBI in this context was by the very same name, but it was a 1994 law. And in short, we used to call it as SEBI Takeover Code 1994. Naam pura ka pura exactly same hai, last में year 1994. You know that SEBI itself came into existence in the year 1992. That SEBI Act 1992, SEBI has been incorporated and established under the SEBI Act 1992. And 94 में first time ये law बना था in the context of substantial acquisition shares and takeovers. Then that law was abolished, and in 1997 we got the another law, SEBI Substantial Acquisition of Shares and Takeover Regulation 1997. In short, we used to call it SEBI Takeover Code 1997, and this has been replaced by the latest one that we are going to discuss, that is the SEBI Substantial Acquisition of Shares and Takeover Regulation 2011. In short, we call it the SEBI Takeover Code 2011. See, this law is effective from 23rd of October 2011. That is the date on which this law came into force. Now, the main reasons why the 1997 Takeover Code was abolished and why did we get the new Takeover Code, there were reasons, there are two main reasons were there. One, to align our law in the context of substantial acquisition, shares and takeover with international practices. To align our law with international practice. What does it mean? इससे पहले 1997 टेकर कोड था और 97 to 2011, in this span of around 14 years, number of changes have happened at the international front in the context of substantial acquisition, shares and takeover. And those things have not been addressed in our law at that point of time. The 97 takeover did not have a lot of those things which were new developments at the international front in this context. And that's why somewhere we have started feeling that our law, our takeover law has almost become outdated with the changes happening at the international front. That's why it was thought that why not we also have a law which matches with the international practices. That's why old takeover code was abolished and we got the new takeover code. A lot of new things have been introduced in the new takeover code which were not there in the old takeover code. And the idea is basically so that we can have our law in our country which matches with the international practices. और वैसे बोलते हैं आज की ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में you cannot remain in seclusion. You have to become the part of the global economy. तो जो चीजें दुनिया में कहीं भी चेंजेस उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में भी sooner or later, maybe sometime we are late,
बट क्वेश्चन अभी तक जीएसटी, तो जीएसटी क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की चीज है, कोई हाल यहाँ की बात नहीं है। आज जितने मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशंस दे हैव द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, एंड दैट्स व्हाई एक तरह से इंटरनेशनल एंगल से भी इट हैज बिकम मोर ऑफ अ कंपल्शन। रीजन भी आप जितनी ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, इतने इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, वी नीड टू हैव अ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। जैसा वर्ल्ड वाइड हो रहा है वैसा हमें भी फॉलो करना पड़ेगा। नाउ नंबर 2, द सेकंड रीजन व्हाई द ओल्ड टेकओवर कोड वाज abolished and we got the new takeover to make the takeover laws simple. That was another reason why। और सही में 97 वाला जो टेक ओवर कोड था, इफ आई कंपेयर दैट टेक ओवर कोड विद द प्रेजेंट वन, आप तो शायद अप्रिशिएट कर नहीं पाएंगे बिकॉज यू डोंट नो व्हाट वर द कंटेंट्स ऑफ द टेक ओवर कोड 1997। दिस इज कंपैरेटिवली सिंपलर वन। 2011 वाला टेक ओवर कोड काफी सिंपल है। हाँ, ये अलग बात है कि आप जब पढ़ेंगे तो ये भी मुश्किल लगेगा, लेकिन बोलते हैं चीजें जब कंपेयर करते हैं तब पता लगता है कि विच वन इज मोर डिफिकल्ट। ऑब्वियसली द ओल्ड वन वाज मोर डिफिकल्ट, क्योंकि मैंने उसको काफी टाइम तक पढ़ाया है। ये 2011 में तो ये आया ही, आप देख रहे हैं फर्स्ट टाइम आपके एग्जामिनेशन में इज वाज एप्लीकेबल फॉर जून 2012 एग्जाम। तो ये 23 अक्टूबर 2011 को इफेक्टिव था, दिसंबर 2011 में तो एप्लीकेबल था नहीं, तो फर्स्ट टाइम जून 2012। तो काफी टाइम तो मैंने ओल्ड वाला ही पढ़ा है 97 टेक कोड। एंड जब आपको ये स्टार्ट किया तो काफी इसमें काफी सारी चीजें डाइल्यूट कर दी है, लॉट ऑफ थिंग्स आर सिंपलर एंड ऑब्वियसली। तो वो मतलब वैसे ये लॉ, इनफैक्ट कैपिटल मार्केट लॉज में 2-3 लॉज कहा जाते थे, एक दिस वन, एक इनसाइडर ट्रेडिंग लॉ। दीज आर कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लॉज ऑफ द कैपिटल मार्केट। मतलब कैपिटल मार्केट में जितने भी लॉज हैं, जैसे आप ये बोलते हैं एलओडीआर रेगुलेशन बोलते हैं, आईसीडीआर रेगुलेशन बोलते हैं, दिस वन इनसाइडर ट्रेडिंग, आईसीडीआर रेगुलेशन, दीज आर कंसिडर्ड टू बी, और उनमें भी सबसे टफ लॉ में ये लॉ बना था। ये कंपैरिजन करें 97 टेक कोड से, इट हैज बिकम सिंपलर, बट अदरवाइज इवन टुडे it is one of the more complicated laws of the capital market. Anyway, देखिए, so this is the two main reasons why the 97 takeover code has been abolished, and this is first reason. Second is to make the takeover laws simple, and these are the two primary reasons because of which we got the new takeover code, that is SEBI takeover 2011, effective from 23rd October 2011. Is that clear? देखिए, जून 2012 का पेपर उठा के देखोगे ना, टेकओवर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। उनको समझ में नहीं आया था नया से क्या पूछें, केवल तो हो गया था। नहीं तो मतलब इतना बड़ा टॉपिक आप एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, क्या मतलब है? समझ ही नहीं आ रहा, पता खुद नहीं पढ़ा होगा या खुद अपडेटेड नहीं होगा। ठीक है, जून 2012 में एक भी क्वेश्चन टेकआउट टॉपिक क्वेश्चन नहीं आया। नहीं तो इतना बड़ा टॉपिक, हाउ कैन रियली मिस दैट टॉपिक एंड नो क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। एनीवे, देखिए, दिस न्यू लॉ is based on recommendation of a committee headed by Mr. C. Achyutan. And you know that the names of the committees are named after their chairman. That's why this committee was called as the Achyutan Committee. And this new takeover code is based on the recommendation of Achyutan Committee recommendation. एक बड़ी यूनिक बात है अबाउट दिस, एक्चुअली अगर आप नहीं जानते तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। दिस मैन मिस्टर सी अच्युतान, वन ऑफ द वेरी वेल रेस्पेक्टेड नेम इन द कैपिटल मार्केट। ही हैज बीन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सैट। आप जानते हैं सैट सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी रह चुके हैं। I knew that SAT is a body equivalent to the High Court. तो उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर में वेरी रिस्पेक्टेबल पोजीशन, वन। नंबर 2, जब सत्यम स्कैम हुआ था, और सत्यम स्कैम के बाद क्या हुआ था, ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी दे बीन टर्मिनेटेड एंड 3 डायरेक्टर्स वर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट। कि साहब जब कंपनी का टेक ओवर होगा तो न्यू प्रमोटर विल अपॉइंट अ न्यू डायरेक्टर, एंड पुराने डायरेक्टर एक्चुअली क्या है, मिस्टर राजू हुआ द प्रमोटर ऑफ द सत्यम। मैं बताऊंगा डिटेल में केस आपको, इस सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। Mr. Raju ceased to be the promoter of Satyam. Why he ceased to promote? There were reasons for that. And because of that reason and because of the number of frauds and violation, government terminated all the directors. And it was
found out as a solution that this company must be taken over by some new person, new promoter. And new promoter will appoint his own directors. But for the time being, there was a gap. Old promoter has gone, new promoter will step in, there is a gap. To fill up that gap, government appointed 3 people and the board of this company as a director, Satyam. And वो सिर्फ stop gap arrangement था कि नए बंदे को ढूंढ के promoters को ढूंढना उनका काम था. The new people appointed by the government did not have any personal interest in the business of Satyam. उस 3 नाम में एक नाम इनका भी था. He was also one of the appointed director on the board of Satyam because capital market की बहुत अच्छी समझ है. एक मिस्टर दीपक पारेख को अपॉइंट किया गया था HDFC चेयरमैन, एक इनको अपॉइंट किया गया था, एंड थर्ड नेम है मिस्टर किरण कार्निक. अगर आप जानते हो किरण कार्निक इज ऑल्सो एक बॉडी का नाम सुना, नेस्कॉम, ऐसा इंडस्ट्री बॉडी रिलेटेड आईटी. तो ये नेस्कॉम को चेयरमैन भी रह चुके हैं मिस्टर किरण कार्निक, अगेन अ वेरी बिग नेम इन द आईटी सेक्टर. तो नेस्कॉम आप जानते हैं सत्य में आईटी कंपनी थी, उस कारण से उनको अपॉइंट किया गया था. इन 3 लोगों को अपॉइंट किया था बाय द गवर्नमेंट एंड सो एज टू फाइंड आउट द न्यू प्रोमोटर. दैट वाज स्टॉप गैप अरेंजमेंट, मैं डिटेल में बाद बताऊंगा. अच्छा, एक बड़ी कैसे आयरोनिकल चीज है. दिस कमिटी वाज हेडेड बाय मिस्टर ई सचुतम and this committee gave the recommendation. Now on the basis of the recommendation, when the SEBI notified the new takeover code, in the meanwhile he passed away. He was not and alive on 23rd October 2011 when this law new law came into force. कोई recommendation दे चुके थे, उसके basis पे SEBI was supposed to what we call the notify the new law and make the new law on the basis that, and in the meanwhile he passed away. काफी aged थे आपको, ठीक है. एंड मतलब इनका एक नाम है, मतलब कैपिटल मार्केट में बहुत बड़ा नाम है. एनीवे, तो 2-3 चीजें मैंने एग्जाम्पल है. सत्यम वाला केस है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर सैट एंड ऑल दैट, ठीक है. एनीवे, सो दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस लॉ, व्हाई दिस लॉ वाज मेड, व्हाट वाज द कमिटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस न्यू लॉ वाज मेड एंड ऑल दिस थिंग्स. नाउ आई कम टू द पर्पस ऑफ दिस लॉ. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सेबी टेकओवर कोड? Purpose of this law is to regulate the following. One, substantial acquisition of shares. Substantial acquisition of shares. See, in this particular law, shares or voting rights are one and the same thing. Why is it so? I will discuss in detail. Shares and voting rights are one and the same thing. So whether I say substantial acquisition of shares or I say substantial acquisition of voting rights, is one and the same thing. हमने लिखा साहब, द पर्पस ऑफ दिस लॉ इज टू रेगुलेट, दैट इज द फर्स्ट थिंग. रेगुलेट व्हाट? सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स और वोटिंग राइट्स. क्योंकि इस लॉ में आप जो शेयर्स की डेफिनेशन पढ़ोगे, इट इंक्लूड्स ओनली द इक्विटी शेयर्स, एंड यू नो दैट देयर इज ऑलवेज अ वोटिंग राइट विद द इक्विटी शेयर. दैट्स व्हाई वी से सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स, इट मींस द सब्सटेंशियल एक्विजिशन वोटिंग राइट्स. एंड ऐसा क्यों है कि व्हाई दिस लॉ इज कवरिंग ओनली द इक्विटी शेयर इन द शेयर्स, व्हाई नॉट द. तो जनरल मीनिंग का शेयर का हम लें तो शेयर मीन बोथ इक्विटी शेयर एज वेल एज द प्रेफरेंस शेयर. बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस लॉ, द शेयर इज ओनली इक्विटी शेयर. They don't treat the preference share. Whenever say substantial equivalent share, in that context, they are not considering the preference share, they are only considering the equity share. Why? So we'll discuss the reason for the same. And because with every equity share, they always have a voting right. That's why we can also say like that, substantial acquisition of voting rights is one and the same thing. Now, इसको जो है मैं explain करता हूँ. इसका मतलब is equal to acquisition of substantial quantity of shares or voting rights. To put in the simple words, I can say that substantial acquisition of shares or voting right means acquisition of substantial quantity of shares or voting rights.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर सब्सटेंशियल क्वांटिटी किसे कहें? अगला क्वेश्चन ये आएगा दिमाग के साथ, सब्सटेंशियल क्वांटिटी। ये तो थोड़ा सा हमने सिंपल कर दिया, बट क्वेश्चन ही एक्विजिशन आई अंडरस्टैंड, शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट ठीक है, लेकिन किस चीज को? सब्सटेंशियल क्वांटिटी। नाउ द क्वेश्चन इज सब्सटेंशियल क्वांटिटी क्या होता है? एंड देखिए मैं भी बताता हूं। लेट्स से देयर सम पर्सन ए एंड ही इज टारगेटिंग सम कंपनी एक्स लिमिटेड, and if he is targeting this company X Limited by way of substantial acquisition shares, it means what he is trying to do? Acquisition of substantial quantity of shares or voting right. Substantial acquisition shares का मतलब मैंने क्या लिख दिया? Acquisition of substantial quantity of shares or voting right. It means अगर A X Limited कंपनी में substantial acquisition shares लेने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब क्या है? He is trying to acquire the substantial quantity of shares or voting right. वो substantial quantity क्या है? I will explain that. हमने बोला सर दिस लॉ रेगुलेट्स, नंबर वन दिस, नंबर टू एक और चीज मैं बताऊंगा, इट ऑल्सो रेगुलेट्स द टेक ओवर। अच्छा लॉ का नाम क्या है? सेबी विद इन ब्रैकेट सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर एंड टेक ओवर, बिकॉज द पर्पस ऑफ दिस लॉ इज टू रेगुलेट बोथ द थिंग, दैट्स व्हाई दैट इज मेंशन विद इन द ब्रैकेट, सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर वन थिंग एंड टेक ओवर इज द अनदर थिंग। अभी मैं टेक ओवर पे आऊंगा, एंड टेक ओवर। And since it's a law made by SEBI, that's why in the beginning of the law, SEBI, last में SEBI always make the law in the form of regulation, and that's why SEBI within bracket substantial acquisition share। तो दो बातें हैं, ये अलग अलग चीजें हैं, एंड दोनों को रेगुलेट करने का पर्पस है, that's why accordingly the name of the law is there, SEBI substantial acquisition shares and takeover regulation 2011। now अच्छा ये अगर एक्स लिमिटेड कंपनी को टारगेट कर रहा है by the way of substantial acquisition of shares, that is acquisition of substantial quantity of share voting right, will the conduct of A be regulated by this law? Hamle this law regulates what? This. Acha, when this person is trying to acquire substantial quantity of shares of voting right of X Limited, it means this thing, this transaction should be regulated by this law. Who is doing this transaction? A. Should the A's conduct be regulated by this law? Yes. And the person who tries to target the company by way of substantial acquisition share, that person will be called as the acquirer, and the company which is being targeted will be called as the target company. इस पूरे लॉ में जो टेक ओवर या सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर करने की कोशिश करेगा उसे क्या बोलेंगे? एक्वायरर, एंड द कंपनी विच इज बीइंग टारगेटेड विल बी रेफर्ड एज द टारगेट कंपनी। इट मींस इफ सम पर्सन ए, दैट इज द एक्वायरर, इज टारगेटिंग दिस कंपनी बाय वे ऑफ सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स, in that case the A's conduct will be regulated by the provisions of this law, and how it will be regulated I will explain the same, but definitely इसके ऊपर A के conduct के ऊपर ये law apply होगा, and that is the one of the purpose of this law to regulate substantial acquisition share. And who is doing the substantial acquisition? Acquirer, and that's why conduct of the acquirer will be regulated by the provisions of this law. How it is regulated I will explain in detail, किस तरीके से law आपको acquirer के इस तरह के action को regulate करता है। अच्छा इज इट प्रोहिबिटेड और रेगुलेटेड? तो मना नहीं है, कोई सब्सटेंशियल एक्विजिशन करना या टेक ओवर करना इज नॉट प्रोहिबिटेड, इट इज अलाउड बट सब्जेक्ट टू सर्टेन नॉर्म्स टू बी फॉलोड मेनली बाय हूं? बाय द एक्वायरर। एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा लॉ समझना है कि एक्वायरर के वो बहुत सारे नॉर्म्स लग रहे हैं विद द एक्वायरर इज सपोज टू फॉलो व्हाइल टारगेटिंग सम कंपनी ईदर बाय वे ऑफ सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स और बाय वे ऑफ टेक ओवर। अभी टेक ओवर पे मैं आता हूं। नाउ जब इसकी हम बात करेंगे सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स, this is governed by regulation number 3, जो सेबी टेक ओवर कोड, सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011 जो है, इसके अंदर वी हैव नंबर ऑफ रेगुलेशन एंड विल डिस्कस द सेम, बट आउट ऑफ दैट देयर आर टू प्राइमरी रेगुलेशन, वन इज रेगुलेशन 3, अनदर रेगुलेशन नंबर 4। रेगुलेशन 1 में तो आप जानते हैं एज यूजुअल नाम हम है, कब से इफेक्टिव हुआ एंड ऑल दैट। रेगुलेशन 2 में डेफिनेशंस होगी, जैसे एक्ट में सेक्शंस होती है। रेगुलेशन 3 एंड 4 जो सबसे पहले के रेगुलेशन है, 3 डील्स विद सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर एंड रेगुलेशन 4 डील्स विद द टेक ओवर। इट डील्स विद द टेक ओवर, इज द मेन प्राइमरी, कहते हैं कि आप मेन स्ट्रक्चर ऑफ द लॉ 3 और 4 से बन जाएगा। बाकी जो आगे रेगुलेशन 5, 6 तो हम एक लाइन से पढ़ेंगे, दे विल ऑल बी फिलर्स। जैसे बोलते हैं हम एक मकान बनाते हैं, एक मकान का ढांचा खड़ा हो जाता है, फिर ढांचे के बाद हम क्या करते हैं, उसमें फिर दरवाजा कहाँ होगा, खिड़की कहाँ होगी, उसकी फिनिशिंग करते हैं, फ्लोरिंग करते हैं। ढांचा जो बनेगा 3 और 4 से बनेगा स्ट्रक्चर। बाकी सारे सेक्शन उसमें कोई सीमेंट का काम करेगा, कोई पेंट का काम करेगा, कोई कुछ काम करेगा, कोई बाकी सब सेक्शन रेगुलेशन का वो काम है। बट प्राइमरली द स्ट्रक्चर ऑफ द लॉ इज बेस्ड ऑन रेगुलेशन नंबर 3 और 4, इसलिए वो सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है।
एंड वंस एनी स्टूडेंट मिस दैट रेगुलेशन 3 and 4 आपको ये लॉ समझ नहीं आ सकता, ये कारण स्ट्रक्चर ही वही है, बाकी सब ये फिलर्स हैं। एनीवे देखिए व्हाट आई विल से दैट रेगुलेशन 3 टॉक्स अबाउट सब्सटेंशियल एक्विजिशन। अच्छा सब्सटेंशियल एक्विजिशन की कोई लॉ में डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन नहीं तो मुझे कैसे मीनिंग पता लगेगा साहब किस चीज को सब्सटेंशियल एक्विजिशन बोलेंगे। तो रेगुलेशन 3 के लैंग्वेज एक्चुअली क्या है, दिस लॉ रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ द एक्वायर इन बोथ द केसेस, whether he is targeting the company by way of substantial equity share or by way of takeover। अच्छा टेक ओवर वाला केस रेगुलेशन 4 से गवर्न होता है। इट मीन्स अगर रेगुलेशन 3 में मैं एक्वायरर के कंडक्ट को किसी कॉन्टेक्स्ट में रेगुलेट कर रहा हूं, जो कि टेक ओवर तो है नहीं, टेक ओवर किससे गवर्न होता है, रेगुलेशन 4। इसका इंप्लाइड मीनिंग क्या है, रेगुलेशन 3 में जिस लेवल पर जाके मैं उसके कंडक्ट को रेगुलेट कर रहा हूं, दैट इज द केस ऑफ सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर। क्योंकि एक्चुअली लॉ रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ एक्वायरर ओनली इन 2 कॉन्टेक्स्ट, वन सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर, सेकंड इज टेक ओवर। अगर टेक ओवर में मैं रेगुलेशन 4 में रेगुलेट कर रहा हूं, इट मींस आई एम रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ एक्वायर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक ओवर। बट अगर मैं 3 में रेगुलेट कर रहा हूं तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सब्सटेंशियल, और जिस जहां 3 में कब रेगुलेट होगा, क्या वही चीज क्या है, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स है। मैं बताता हूं रेगुलेशन 3 में क्या दिया होगा। रेगुलेशन 3 से ब्रॉडली खाली हम एक मोटी मोटी बात करेंगे, बाकी डिटेल में तो बाद में बात करेंगे। रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 सेज दैट इफ एक्वायरर proposes to acquire, not acquired, but proposes to acquire certain number of shares of the target company, so that the shares which it proposes to acquire, along with the shares which already have, together he reaches to the level of 25% of the capital of the target company, then it will be regulated by this law। अच्छा इस लॉ से रेगुलेट होगा, इसका 25% के लेवल पे रीच करना, वो क्या है, सब्सटेंशियल एक्विजिशन को लॉ 2 जगह रेगुलेट करता है, या तो सब्सटेंशियल एक्विजिशन पे या टेक ओवर पे। टेक ओवर की बात अभी करूंगा नहीं कि वो रेगुलेशन 4 से गवर्न होता है। रेगुलेशन 3 बोलता है कि अगर आप 25% के लेवल पे आ रहे हैं तो आपको सर्टेन नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या नॉर्म्स मैं बताऊंगा। इसका हैज दिस लॉ स्टार्टेड रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ द एक्वायरर। अच्छा इट रेगुलेट द कंडक्ट इन 2 केसेस, टेक ओवर एंड सब्सटेंशियल एक्विजिशन। टेक ओवर है नहीं तो क्या है, सब्सटेंशियल एक्विजिशन। इसका मतलब डेफिनेशन नहीं दे रखी है, लेकिन जिस लेवल पे जाके ये लॉ उसे रेगुलेट करने लग जाता है, क्या दैट लेवल इटसेल्फ इज अ सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर। अच्छा इसका तो पहला लेवल क्या है, 25%। अच्छा मान लो एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से ए होल्डिंग इन एक्स लिमिटेड इज ऑलरेडी 10%। अच्छा देयर इज अनदर शेयरहोल्डर ऑफ द कंपनी बी ऑफ द एक्स लिमिटेड। अच्छा बी एग्रीज टू सेल एंड ए एग्रीज टू बाय, एक कॉन्ट्रैक्ट में दोनों एंटर करते हैं, और ए एग्रीज टू बाय फ्रॉम बी हु इज द शेयरहोल्डर ऑफ द एक्स लिमिटेड टू परचेज लेट्स से 17% शेयर्स फ्रॉम बी, सॉरी। अच्छा 17% शेयर बी बेचने के लिए तैयार है और ए खरीदने के लिए तैयार है, एग्रीमेंट कर लिया। ए के पास पहले से कितने शेयर है, 10%। 10 प्लस वॉट एवर द शेयर ही प्रपोजेस टू एक्वायर, इट इज रीचिंग टू 27% एंड 25% और मोर, इट कंडक्ट ऑफ द एक्वायर विल बी रेगुलेटेड। क्या रीचिंग टू द लेवल, क्या इन दिस एग्जाम्पल द मोमेंट ए विल एंटर इनटू एग्रीमेंट विद बी फॉर परचेजिंग 17% शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, क्या उसी स्टेज को मैं सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर बोलूंगा, यस, एंड एस कंडक्ट विल रेगुलेटेड बाय दिस लॉ। कैसे रेगुलेट होता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, हाउ दिस लॉ रेगुलेट्स द कंडक्ट एक्वायर, आई विल एक्सप्लेन दैट। लेकिन एक बात समझना कि 25% के लेवल पे आना, इट इज नथिंग बट अ केस ऑफ सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। इज अ क्लियर? इसका था क्या सब्सटेंशियल क्वांटिटी का मतलब पता लग गया, व्हाट इज दैट, रीचिंग टू द लेवल ऑफ 20। हमने क्या लिखा, एक्विजिशन सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ शेयर वोटिंग राइट। सब्सटेंशियल क्वांटिटी कैसे कहने से दैट for regulation 3 sub regulation 1 we have come to know that reaching to the level of 25% is being treated as substantial quantity of shares of voting right। It means if you are reaching to that, अच्छा मान लीजिए एक्वायरर के पास इस कंपनी में एक भी शेयर नहीं है और एक बार में किसी से 25% शेयर एक्वायर करने के लिए एग्रीमेंट कर ले, क्या उस केस में भी लगेगा? यस। हम ये बोले पहले से आपकी जितनी होल्डिंग है अगर है तो, होना कोई जरूर नहीं है, अगर है तो उसे कंसीडर कीजिए, प्लस शेयर विच यू प्रपोज टू एक्वायर टुगेदर इफ यू आर रीचिंग टू द लेवल ऑफ 25%, you have to make the OPA, you have to comply with this law। It means that चाहे आपके पास पहले से नहीं भी हो, एक बार में 25% या उससे ज्यादा शेयर एक्वायर करें, इन दैट केस ऑल्सो इट इज अ केस ऑफ सब्सटेंशियल एक्विजिशन। पहले से हैं प्लस कुछ और एक्वायर करने एग्रीमेंट कर रहे हैं, टोटल मिला के यू आर रीचिंग टू द लेवल ऑफ 25%, यू आर कवर्ड बाय रेगुलेशन 3 एंड इट इज अ केस ऑफ सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दैट इज द केस ऑफ सब्सटेंशियल एक्विजिशन। अच्छा एक और चीज देखो बड़ी इंटरेस्टिंग, ऑल्दो मतलब नहीं उतना फर्क, लेकिन आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए, अगर सब्सटेंशियल एक्विजिशन या सब्सटेंशियल क्वांटिटी की डेफिनेशन दे देते
और रेगुलेशन 3 में हम डायरेक्टली फिर ऐसे बोल सकते थे, इफ द एक्वायरर प्रपोजेस टू डू द सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स, बोल सकते थे। एंड वहां पे सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर की मीनिंग कहां से थे? फ्रॉम द डेफिनेशन गिवन द रेगुलेशन 2, ऐसा कर सकते थे, ये सुनो। लेकिन रेगुलेशन 2 में इसकी डेफिनेशन नहीं है, द टर्म सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स हैव नॉट बीन डिफाइंड। इसका अगर डिफाइंड नहीं है तो कैन आई यूज दिस टर्म अंडर रेगुलेशन 3? नो, तो रेगुलेशन 3 ये टर्म यूज नहीं करता, सीधा कहता है इफ द एक्वायरर प्रपोजेस टू एक्वायर सर्टेन नंबर ऑफ शेयर so that together with the existing holding, if any, he reaching to the level of 25%, he has to comply with this law. मतलब आप जब आप लॉ लगा रहे हैं तो या तो सब्सटेंशियल एक्विजिशन है या टेक ओवर है। टेक ओवर रेगुलेशन 4 से गवर्न होता है, इसका मतलब क्या है? सब्सटेंशियल। अब जब इसने टर्म डायरेक्टली कंटेंट्स ऑफ द रेगुलेशन 3 में टर्म नहीं यूज किया है, उन्होंने अमाउंट परसेंटेज बताया कि साहब इस लेवल पे आएंगे, तो हम क्या बोले, ये वो लेवल ही अपने आप में क्या है? सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट। और रेगुलेशन 3 की हेडिंग क्या है? सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट। इसका हेडिंग वो है, कंटेंट्स में वो टर्म यूज नहीं करे। कंटेंट्स में अगर वो टर्म यूज करेंगे, इन दैट केस आई नीड द डेफिनेशन मीनिंग ऑफ द टर्म एंड दैट इज नॉट डिफाइंड इन रेगुलेशन 2। इन्होंने क्या हेडिंग में लिखा हुआ, रेगुलेशन 3 की जो हेडिंग है सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर वोटिंग राइट, और अंदर कंटेंट में क्या किया? परसेंटेज दे रखी है। इसका मतलब ये सारी बात को रिलेट क्या लग रहा है? दैट रीचिंग टू दैट लेवल इटसेल्फ इज अ केस ऑफ सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट्स। इज इट क्लियर? आगे देखिए आपको, दिस लॉ ऑल्सो सीक्स टू रेगुलेट टेक ओवर। This law also seeks to regulate takeover. Now the next question is, what is takeover? Takeover is acquisition of control. Takeover is acquisition of control. देखिए जो कंपनी एक्स लिमिटेड, इसके ऊपर फिलहाल कंट्रोल क्या इसके प्रोमोटर्स होगा। लेट्स से P is the promoter of X Limited and some person A is targeting this company by way of takeover. अच्छा, by way of takeover is trying to acquire control. Right now, who has got the control over this company? P, the existing promoter of the company. If A takes away the control of this company from P, from the hands of P, will it be acquisition of control of X Limited from the hands of P to the hands of A? Will it be takeover? Will it be takeover? Now who will become the new promoter of the X Limited? A will become the new promoter because now he has got the control. तो क्या कह सकता हूं? टेक ओवर ही बने, पहले बता एक्विजिशन कंट्रोल, चेंज इन कंट्रोल। क्या एक्स लिमिटेड पे कंट्रोल चेंज हो रहा है? अर्लियर इट वाज इनटू द हैंड्स ऑफ पी, नाउ इट इनटू द हैंड्स ऑफ ए। कैन आई आल्सो कॉल इट चेंज इन प्रोमोटर्स? व्हाई? बिकॉज अर्लियर हु वाज द प्रोमोटर ऑफ द एक्स लिमिटेड पी, नाउ इज द न्यू प्रोमोटर ऑफ द एक्स लिमिटेड दैट इज ए। तो इसलिए टेक ओवर, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, चेंज इन कंट्रोल, चेंज इन प्रोमोटर, बाय एंड लार्ज वन एंड द सेम थिंग, बाय एंड लार्ज वन एंड द सेम थिंग। दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। अब देखिए आप, अगर एक्वायरर इस कंपनी को टारगेट कर रहा है by way of takeover, it means he is trying to acquire what? He is trying to acquire the control, trying to become the new promoter of the target company. In that case, this law will seek to will regulate the conduct of the acquirer. मैंने कहा this law regulates the conduct of the acquirer in both the contexts when he is trying to target a company either by way of this or by way of this. In both the cases, the conduct of the acquirer, and this law seeks to regulate the conduct of the acquirer in both the cases. That is the, and accordingly the name of the law is that is there. और ऐसे केस में रेगुलेशन 3 लगे, रेगुलेशन 4, रेगुलेशन 4 बिकॉज टेक ओवर इज गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशन नंबर 4। इज इट क्लियर? अब देखिए आप, मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था, एंड अगेन आई रिपीट दैट। क्या ऐसा हो सकता है कि देयर इज ओनली दिस नॉट दिस, खाली सब्सटेंशियल एक्विजिशन टेक ओवर नहीं, टेक ओवर है सब्सटेंशियल एक्विजिशन नहीं है? एकदम हो सकता है, एंड दोनों चीज एक साथ हो, ये भी हो सकता है। अच्छा, क्या लॉ क्या एक चीज को रेगुलेट कर दोनों को? इट मींस ईदर द एक्वायरर इज टारगेटिंग द कंपनी ईदर बाय ओनली दिस, तब भी लॉ लगेगा, और ओनली बाय दिस तब भी लगेगा, दोनों तब भी लगेगा, क्योंकि दोनों में फर्क है, दोनों एक चीज नहीं है। अच्छा, अगर दोनों एक चीज होती तो हम एक ही बार में बोल देते, बट दोनों बात लिखी हुई, इसका मतलब लॉ ट्राइज टू रेगुलेट, सेबी वांटेड टू रेगुलेट थ्रू दिस लॉ, सेबी ने लॉ बनाया है,
SEBI wanted to regulate both the transaction, whether it is a case of substantial equivalent shares of voting right or takeover, and it wanted to regulate both. That's why accordingly the law is there. मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी. Now, let's say existing promoter of the company P case 1, P shareholding, let's say 40% in this company. Who is the existing promoter of the company? Let's say his shareholding is 40%. Let's say A shareholding reaches to 30%. पहले कुछ थे, कुछ और एक्वायर किए, मिला के 30% आ गया. क्या इज इट सब्सटेंशियल इक्विवेलेंट शेयर्स? अभी था रीचिंग टू द लेवल ऑफ 25% इज सब्सटेंशियल इक्विवेलेंट शेयर्स, बताया था अभी. क्या बट इज इट टेक ओवर? हैज इट बिकम द बिगर शेयर होल्डर देन द एक्जिस्टिंग प्रमोटर? बताया था आपको उसके लिए एग्जिस्टिंग प्रमोटर से बड़ा शेयर होल्डर बनना पड़ेगा. यू नीड टू बी द बिगेस्ट शेयर होल्डर टू एक्वायर द कंट्रोल टू डू द टेक ओवर. तो कह सकते हैं दिस इज अ केस ऑफ सब्सटेंशियल इक्विवेलेंट शेयर्स, but this is not the case of takeover. Substantial acquisition shares तो है, but takeover नहीं है. Clear? Now coming to the case 2. If the existing promoter P's shareholding is 20%, बताया था ना आपको सबसे बड़ा शेयर होल्डर होना चाहिए, बस उससे कुछ मतलब नहीं है. आपको उसने एग्जांपल है, टाटा ग्रुप में कई सारे कंपनी है जैसे प्रोमोटर की होल्डिंग 10, 12, 15% भी है. इफ ए शेयर होल्डिंग बिकम 22%, is it a substantial acquisition shares? No, that is reaching to the level of 25%. But it is a takeover. You have become the bigger shareholder than the existing promoter of the company, and that's a takeover. Obviously, control will move from the P to A. It means that this is an example which is not a substantial share, but is a case of takeover. Why? Because A had become the bigger shareholder than the existing promoter. और सब्सटेंशियल एक्विजिशन के लिए तो लिमिट दे रखे 25% की, रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 में वो हुआ नहीं. दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ केस ऑफ सब्सटेंशियल एक्विजिशन, बट इट्स अ केस ऑफ टेकओवर. नाउ कमिंग टू केस 3. If the P shareholding in the company, it is the existing promoter, is 30%, and if the A acquirer shareholding वाले पहले से 15% और आपने 20% और एक्वायर कर लिया, रीचिंग टू द लेवल ऑफ 35%. 15 पहले से 20 और एक्वायर कर लिया, रीचिंग टू द लेवल ऑफ 35%. क्या इज इट अ सब्सटेंशियल इक्विवेलेंट शेयर्स? यस. इज इट ऑल्सो टेक ओवर? बिकॉज यू हैव बिकम द बिगर शेयर होल्डर देन द एक्जिस्टिंग प्रमोटर. दोनों चीज एक साथ है. मान लीजिए एक ही पहले से 15% शेयर थे, 20% और एक्वायर किए, दोनों मिला के आप 35 आ गए. तो इट इज बिकमिंग द केस ऑफ बोथ सब्सटेंशियल इक्विवेलेंट शेयर्स एज वेल एज द टेक ओवर. नोट नहीं करना, इस तरह की चीज थोड़ा नोट कर लिया करो. एक्स्ट्रा चीजें हैं थोड़ी सी, बाद में आपके लिए इजी हो जाएगा. So this is the case of that where both the things are happening simultaneously, that is substantial acquisition shares as well as the takeover. In all the three cases, will this law apply? Because this law seeks to regulate both substantial acquisition shares as well as the takeover. तो तीनों में से कोई भी केस हो, this law will apply and conduct of the acquirer will be governed by the provisions of this law made by the SEBI.
एंड क्या होता है, मैंने देखा लोग को पूरा लॉ पढ़ जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता दोनों में फर्क क्या है. द वेरी सरप्राइजिंग थिंग दैट इंटायर लॉ दे हैव गॉन थ्रू, लेकिन उनको ये नहीं पता होता दोनों में फर्क क्या है. एंड आपके सामने इसलिए मैंने द वेरी बिगिनिंग आपको थोड़ा एग्जाम्पल देकर बता के दिखाए कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू. कई बार क्या होता है, हम एक सर्टेन लेवल पे आ गए लेकिन टेक ओवर नहीं हो रहा. कई बार टेक ओवर से पहले ही हो जाता है, हम उस लेवल पे आए नहीं. जैसे सेकंड केस है, हम 25% के लेवल पे नहीं आए क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग इज वेरी लो. आप हो जाता 22% पे टेक ओवर हो गया, बट आप फॉर सब्सटेंशियल इक्विटी शेयर दे जा डिफाइंड लिमिट ऑफ 25%, वो आया नहीं. एंड इन दैट केस इट इज ओनली टेक ओवर. बट कई बार दोनों चीजें एक साथ भी हो सकती है, जैसे थर्ड केस आपका. नाउ इसलिए सारी बातों को मिला के क्या four will not apply. In the case 4 will apply, 3 will not apply. Case 2. See, not mutual exclusive. Case 3 both will be applicable. You can understand the two regulation and mutual exclusive. The actually idea is whether it is substantial liquid takeover. By and large, acquirer is regulated in the same manner. By and large regulated in the same. ये नहीं कि साहब थर्ड केस 3 हो गया तो उसको 2 बार कोई रेगुलेट करेंगे. By and large, the norms which are there applicable on the regulator are by and large same, whether it is a case of substantial liquid shares or take. लिखना अलग अलग इसलिए जरूरी था कि आप खाली टेक ओवर लिखते. At times it could have been a case of substantial, या case 1 है, तो फिर हम तो उस पर लॉ नहीं लगाते. SEBI wanted to regulate the conduct of the acquirer in both the cases, that's why we are regulating. But how it is being regulated, it is by and large the same, whether it is substantial liquid shares or it is a case of takeover. Clear? अच्छा, इन सारी बातों को डिस्कस करने के बाद कैन आई पुट इट लाइक दिस, सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स एंड ऑब्लिक और टेक ओवर. ये सुनो, इधर एंड हुआ तो दोनों थी एक साथ, और हुआ तो ईदर ऑफ द टू. क्या तीनों केस अपने आप आ गए? अब देखो इतनी सी बात में सारा कुछ कवर हो गया. सब लेकिन कंक्लूजन बाद में डिराइव करना है, पहले समझना है. ठीक है, सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स एंड ऑब्लिक और टेक ओवर. इसका एंड हुआ तो क्या, दोनों चीज साथ साथ है, और होने का मतलब ईदर ऑफ द टू थिंग्स. उसमें 2 केस बन जाएंगे. सब्सटेंशियल इक्विटी शेयर्स है, टेक ओवर नहीं है. टेक ओवर है, सब्सटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं है. और एंड का मतलब दोनों चीज एक साथ. इज इट क्लियर? देखिए, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ दिस लॉ रेगुलेट्स the conduct of the acquirer when the acquirer is targeting the company either by way of substantial equity shares or by way of takeover. Is that clear? देखिए, उससे पहले मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा. He is targeting this company either by way of substantial equity shares or voting rights or by way of takeover, that is acquisition of control. How the conduct of the acquirer is regulated by this law, but before that we need to understand one more thing. According to the definition of acquirer given in the regulation number 2, regulation 2 will contain the general definitions of the frequently used terms. तो एक्वायर की डेफिनेशन जो दे रखी है, दैट से इट मीन्स एनी पर्सन. एनी पर्सन मीन्स एक्चुअली एनी पर्सन, वेदर इट इज अ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ पर्सन, सिंगल पर्सन, कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट, कुछ भी ले लीजिए आप, इंडियन ओरिजिन, फॉरेन ओरिजिन, कुछ भी. मतलब इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक्वायर ऐसा ही होना चाहिए. Acquirer may be individual, it may be body corporate, it can be group of individuals, it can be Indian body, it's a foreign body, कुछ भी हो सकता है. It can be Indian citizen, it can be foreign citizen, कुछ भी. तो बोले acquirer बहुत वाइड है वो टर्म, कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन. इसे तुमने नोट किया, मैं ए लिमिटेड नहीं यूज कर रहा, मैं सिर्फ ए टर्म यूज कर रहा हूं, बिकॉज इट कैन बी एनी पर्सन. जो हमने अनलिस्टेड कंपनी का टेक ओवर पढ़ा था, वहां पे जो एक्वायर था, जो ट्रांसफरी कंपनी, दैट हैज टू बी अ कंपनी. मैंने बोला भी था वहां पे, like in the context of the SEBI takeover, where we are talking about the takeover the listed company, there acquirer may be anyone, not necessarily to be a company, and it can be anyone from India or from abroad, कुछ भी हो सकता है. लेकिन रिगार्डिंग दैट सबकी डेफिनेशन में बताऊंगा, हमारे पहले एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बात कर लेते हैं.
देखिए दिस, क्योंकि मेरा बार बार मानना है हम कोई भी चीज पढ़े, इवन डेफिनेशन ही पढ़े, पहले वी शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ द लॉ, कि लॉ क्या है, कैसे बना हुआ है, फिर हम क्या करेंगे, चीजों को पढ़ेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा। द एक्स लिमिटेड जो टारगेट कंपनी है, इट हैज टू बी एन इंडियन लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट। According to definition of target company, it has to be Indian listed body corporate. अगर वो इंडियन लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट है तो टारगेट कंपनी मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। अच्छा एक और चीज है कि बॉडी कॉर्पोरेट इज ए वाइडर टर्म देन कंपनी। अच्छा एनीथिंग विच हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, एंड सिंस ऑल कंपनीज हैव गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट्स व्हाई ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट, बट देयर कैन बी अदर बॉडी लाइक which are established under special act of parliament like LIC, UTI, SBI, our institute, ICSI, they are also body corporate. But खाली body corporate नहीं, it should be listed. तो obviously ICSI नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है, हमारी इंस्टीट्यूट थोड़ी लिस्टेड है। अच्छा वैसे जो अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वाली जो बॉडीज होती है, कैन इट बी लिस्टेड? SBI लिस्टेड है कि नहीं? एकदम लिस्टेड है, ठीक है। आई थिंक मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा सर, GIC जो है, GIC अभी उसका IPO है ना, आई थिंक GIC इज आल्सो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एंड मे बी आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कंपनी फॉर्म में भी, वो चेक करना पड़ेगा अभी इसका IPO आया कि नहीं आया ना। एनीवे मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, देखिए इट शुड बी इंडियन बॉडी, इट शुड लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, शेयर सिक्योरिटी शुड लिस्टेड ऑन एंड शुड बी बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा इसमें सारी इंडियन लिस्टेड कंपनी कवर हो जाएगी। इंडियन लिस्टेड सेम ये बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड ऑल कंपनी, इट भी क्या ऑल सारी इंडियन लिस्टेड कंपनी कवर हो जाएगी। हाँ इसके अलावा भी कोई बॉडी है जो कि कंपनी नहीं है लेकिन इंडियन है और लिस्टेड है, जैसे SBI। अच्छा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या इंडियन लिस्टेड कंपनी है? नो, व्हाई? बिकॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर SBI एक्ट, बट सिंस द शेयर्स ऑफ द SBI आल्सो बीइंग ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड दैट्स व्हाई इट इज इंडियन बॉडी, इट इज आल्सो इंडियन लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट। इसका मतलब क्या टारगेट कंपनी SBI भी हो सकती है? यस। अच्छा कंपनी वर्ड हम बोल रहे हैं, बट डोंट गो बाय द वर्ड कंपनी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनीज एक्ट, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंपनी एक्ट में कंपनी का मतलब हम तो सिर्फ कंपनी लेते हैं विच आर फॉर्म्ड एज ए कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, बट यहाँ कंपनी का मतलब क्या है? इंडियन लिस्टेड बॉडी। तो अगर SBI को भी कोई टारगेट अगर कर रहा है तो क्या ये लॉ अप्लाई हो सकता है? यस इट कैन बी। व्हाई? बिकॉज द लॉ सेज दैट हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट द टारगेट कंपनी मींस इंडियन लिस्टेड body corporate. So all Indian listed company will be covered, but in addition to that, if some other Indian listed entity is there, which is not a company but a body corporate, it will also be covered under target company. It will also be called as the, can be called as the corporate. मतलब SBI को भी कोई target करता है by way of substantial equity share or by a takeover, even that will be regulated by this law. Why? Because target company can be any Indian listed body. Company word से confuse होता है ना, कंपनी वर्ड का तो कंपनी लॉ से नहीं डिराइव करना, यहाँ पे अलग से डिफाइन किया हुआ टारगेट कंपनी में भी एनी इंडियन लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट। अब देखो कभी आपको ये चेक करना हो कि इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट दिस लॉ विल अप्लाई, तो शुड आई चेक द स्टेटस ऑफ एक्वायरर और द स्टेटस ऑफ टारगेट कंपनी। अगर मुझे चेक करना हो कि एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हो रही है कि उसके ऊपर सेबी टेकओवर बोर्ड अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो शुड आई चेक द स्टेटस ऑफ द एक्वायरर और द टारगेट कंपनी, क्योंकि इसका स्टेटस देखे तो कुछ पता नहीं चलेगा, बिकॉज इट कैन बी एनीवन, किसी भी केस में लॉ लग सकता है। अच्छा कंक्लूसिव क्राइटेरिया या डिसाइसिव क्राइटेरिया इससे पता लगेगा, इफ द टारगेट कंपनी हैपेंस टू बी इंडियन लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट दिस लॉ विल अप्लाई, इफ इट हैपेंस टू समथिंग एल्स दिस लॉ विल नॉट अप्लाई। तो accordingly we can find out is what will the basis, how will I check whether this law will apply on a particular transaction or not. I have to check the status of the target company, and if the target company happens to be Indian listed body corporate, this law will apply, otherwise this law will not apply. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो डाइची सैंक्यो जो जापानीज कंपनी थी, इतने जब रैनबैक्सी का टेक ओवर किया था, रैनबैक्सी लैबोरेटरी लिमिटेड, it was an Indian listed company. At that point of time, it was an Indian listed company. And ये आपका एक्वायरर है, तो एक्वायरर से तो मेरे को फर्क पड़ता ही नहीं है, ये टारगेट कंपनी है। क्या ये लॉ लगा था? क्या this transaction must have done and the takeover of the Ranbaxy Laboratory Limited
बाय डाइची सैंक्यो वाज एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेबी टेको। उस समय 97 वाला टेको कोड था, वो अलग बात है, लेकिन वहां भी मोरलेस सेम मीनिंग था। वहां पता क्या फर्क था, वहां टारगेट कंपनी का मतलब था इंडियन लिस्टेड कंपनी। अब इन्होंने न्यू में क्या कर दिया है, इंडियन। आई थिंक एक करेक्शन है, होना यही चाहिए था। बोलते ना हर चीज इवॉल्व होती है, इवॉल्व समझो ना, हर चीज बेटर होती है ओवर अ पीरियड टाइम। तो कहीं बाद में इनको रियलाइज हो कि हमने गलती कर रखी है। मैं बता दूंगा क्या गलती कर रखी है, अब ठीक किया इन्होंने। अच्छा एक्चुअली कोई कभी कभी जरूरत, अच्छा इंडियन लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन कंपनी, बहुत कम एग्जांपल मिलेंगे, बहुत कम एग्जांपल। जैसे एसबीआई में ढूंढ के एग्जांपल निकालना पड़ रहा, बहुत गिने चुने एग्जांपल मिलेंगे। और उनका कभी आज तक किसी ने टारगेट नहीं किया, तो वहां अगर नहीं भी लिखा हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ मिस्टेक है, एंड ये क्या बहुत है। अच्छा फ्यूचर में एलआईसी के भी पब्लिक इशू की बात है, एलआईसी की भी पब्लिक इशू की बात है। बहुत सारे सरकार देख एक्चुअली क्या, अच्छा पब्लिक इशू में क्या इनमें सब ऑफर फॉर सेल भी हो सकता है। अच्छा ऑफर फॉर सेल होगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। इतना पैसा लगा रखा है तो धीरे धीरे क्या कहते हैं, बहुतों में होने वाला है। बहुत सारी कहानी एलआईसी में भी बात चल रही है कि साहब इसका भी आईपीओ ला सकते हैं। इनमें देखिए मैं एक बात में बता, अच्छा इसमें एक चीज और ऐड करते हैं। जब टाटा स्टील ने ये एक्वायर था, कोरस का टेक ओवर किया था, इसे यूरोपियन कंपनी, क्या ये लॉ लगा था? व्हाट इज द टारगेट कंपनी? कोरस, एंड दिस यूरोपियन कंपनी, तो ये लॉ नहीं लगा था, यूरोपियन लॉ लगा। उनका जो टेक ओवर लॉ वो लगा होगा। वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, डेफिनेटली दैट वुड एप्लीकेबल। इट वाज नॉट गवर्न्ड बाय द इंडियन लॉ, इट वाज गवर्न्ड बाय द यूरोपियन लॉ। इसका तो आपको दो एग्जांपल आपके सामने जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन चेक वेदर अ पर्टिकुलर, दोनों ही टेक ओवर, वो भी टेक ओवर ये भी टेक ओवर है, बट नॉट नेसेसरी दैट। अब क्या होता है, ये सब चीजें नहीं क्लियर है, छोटी छोटी बातें हैं कि साहब टेक ओवर सुन लिया, ये लॉ लगा दिया। वन हैज टू अंडरस्टैंड कि साहब टेक ओवर होने का मतलब हर टेक ओवर ये लॉ थोड़ी लगा दोगे। You have to find out whether this law will be applicable on a particular transaction take or not. Then in that case, the criteria is that check the status of target company. If the target company happens to be any Indian listed body corporate, this law will apply. If it is anything else, this law will not apply. And don't be bothered about the status of acquirer. कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता. This law may apply irrespective of the status of the acquirer. Only thing I need to check is that what is the status of target company. If it happens to be Indian listed body corporate, this law will apply. Otherwise, this law will not apply. Is that clear to everyone? Now. मैं एक बात बताना चाहता था यहां पे, थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर देखें, कैपिटल मार्केट लॉज जो हैं वो सारे बॉडी कॉर्पोरेट को इक्विवेलेंट ट्रीट करते हैं। वो कंपनी और अदर देन कंपनी को अलग अलग ट्रीट नहीं करते। बॉडी कॉर्पोरेट आई एम सेइंग दैट, वो सबको इक्विवेलेंट ट्रीट करते हैं। कंपनी लॉ की पोजीशन अलग है, कंपनी लॉ ओनली टॉक्स अबाउट कंपनीज। उसके रीजंस हैं, एक चीज बताओ, डज द कंपनीज एक्ट had a detailed provisions to tap the capital market? No. थोड़े बहुत चीजें, मेजरली इट इज गवर्न्ड बाय द कैपिटल मार्केट लॉ। अगर हम एक कंपनी की पब्लिक इशू की बात करें तो मेजर बातें हमें कहां से पता थी? कैपिटल मार्केट लॉ से। कंपनी एक्ट में बहुत ना के बराबर थोड़ी बहुत चीजें। अच्छा कंपनी बनी तो बने ही कैसे? एज पर कंपनी एक्ट। उसका काम काज कैसे चलेगा, मैनेजमेंट कैसे, शेयर, मतलब बेसिकली एक जनरल बात है, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर राइट, डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होंगे, दैट इज बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज प्राइमरली गवर्न्ड बाय द एक्ट। अच्छा मैं अगर एसबीआई की बात करूं तो एसबीआई का इनकॉर्पोरेट होना, एसबीआई की मैनेजमेंट, ये एसबीआई के, एलआईसी एक्ट के हिसाब से, ये चीजें तो अपने अपने लॉ से चल रही है। ऑल कंपनीज आर गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट। हाँ ये स्पेशल नहीं है, सारी कंपनी के लिए कॉमन लॉ है। लेकिन जब आप लार्ज स्केल पे फंड रेज करने की बात, लाइक यू वांट टू एंटर इनटू कैपिटल मार्केट, उस केस में मेजरली इट विल गवर्न बाय कैपिटल मार्केट लॉ। तो कैपिटल मार्केट लॉ डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कंपनी एंड अदर बॉडी कॉर्पोरेट, इट ट्रीट्स ऑल बॉडी कॉर्पोरेट अलाइक। अगर जब सबको एक जैसा ट्रीट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सब पे एक ही प्रोविजन लगेंगे। इसका कोई क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि साहब एसबीआई ने अगर पब्लिक इशू लाया था या आज एफपीओ लाना चाहे तो क्या इट विल फॉलो द सेम आईसीडीआर रेगुलेशन। वो आईसीडीआर रेगुलेशन पढ़ते हो ना, आईसीडीआर रेगुलेशन पब्लिक इशू के प्रोविजन, आईपीओ एफपीओ पढ़ते हो। तो आज अगर कोई मान लिया अदर देन कंपनी, जैसे मेरा एलआईसी का आईपीओ आना है तो वो भी सेम आईसीडीआर रेगुलेशन फॉलो करेगी। अच्छा एक और बात, आप अगर ध्यान से कभी देखा हो, कैपिटल मार्केट लॉ में सही माने कंपनी वर्ड यूज नहीं करते, तो ईश्वर टर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ईश्वर। वो तो हम लोग एज ए टीचर, क्योंकि आपको ज्यादा कंपनी से रिलेट करते हैं तो हम क्या कहते हैं, कंपनी बोल देते हैं बीच में, या कहीं लिख भी देते हैं। लेकिन कैपिटल मार्केट लॉ के अंदर एक्चुअली कंपनी टर्म नहीं यूज करते, ईश्वर टर्म यूज करते हैं। और ईश्वर की डेफिनेशन जो पढ़ोगे, उन्होंने ईश्वर को डिफाइन किया, एनी बॉडी कॉर्पोरेट। क्या बोला? एनी बॉडी कॉर्पोरेट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसलिए क्या कोई पूछ ले साहब कोई अदर देन कंपनी, कोई दूसरा बॉडी, आजकल ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं, तो अगर पब्लिक इशू लाना चाहे तो क्या करेंगे? सेम कैपिटल मार्केट लॉ, सेम, बिकॉज कैपिटल मार्केट डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ कंपनी एंड द नॉन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट,
दे ट्रीट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट अलाइक. हाँ, कंपनी लॉ और उनके अपने लॉज उनमें फर्क है, लेकिन कैपिटल मार्केट में कोई डिफरेंशिएशन. अब देखो, उस एंगल से सेबी टेक कोड भी कैपिटल मार्केट लॉ है. उस एंगल से देखा जाए, क्या पहले 97 टेक कोड के अंदर लिखा था टारगेट कंपनी मेरी इंडियन लिस्टेड कंपनी, क्या गलत था? क्योंकि जब आप सबको अलाइक ट्रीट कर रहे हैं सारे, अब जाके उन्होंने ठीक कर दिया न्यू के अंदर. अब आज तक दिक्कत आई क्यों नहीं थी? क्योंकि साहब ऐसे गिने चुने इंडियन लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट है अदर देन कंपनी, और कभी इनको किसी ने कोई टारगेट नहीं किया, तो कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई, तो इसलिए गलत भी लिखा होता, काम चल रहा था. बहुत सारी चीजें इवॉल्व, इसी को बोलते हैं इवोल्यूशन, कि हमें अपनी गलतियों खुद ही पता लगता है और हम उसको धीरे धीरे करते हैं, बेटर करते हैं. तो बाद में रियलाइज हुआ तो न्यू लॉ के अंदर उसको ठीक कर दिया चाहे, और लेकिन आज तक गलत लिखा हुआ तब भी काम चल रहा था. रीजन भी कभी कोई ऐसी परेशानी आई नहीं थी. एनीवे देखिए, ये वही वाली सिचुएशन है भाई. आपने कोई चीज गलत पढ़ ली, एग्जाम में उसको क्वेश्चन ही नहीं आया, तो गलत पढ़ने के बाद भी नुकसान नहीं हुआ. अच्छा आया चॉइस में निकल गया, अच्छा आया गलत हो गया, फिर भी पास हो. कौन से 100/100 लाने पास होने के लिए? तो कई बार क्या होता है, गलत होने के बाद भी हमें पता नहीं चलता कि उसका नुकसान क्या हो रहा है. एग्जैक्टली उसे लॉ में गलत चीजें लिखी हुई, उसका नुकसान पता नहीं चला, चली गया, बच्चा पास भी हो गया, डिग्री मिल गई, सब कुछ हो गया, बट वो रियलाइज. इसलिए एक चीज अगर आपने सुना हो, एक लाइन बड़ी अच्छी बोलते हैं, बोला एवरीवन नोज हाउ टू लर्न बट वेरी फ्यू पीपल नोज हाउ टू डी लर्न एंड रीलर्न. डी लर्निंग का मतलब होता है शेडिंग अवे द रॉन्ग नॉलेज एंड गेटिंग द राइट नॉलेज, और री लर्निंग में डूइंग द सेम थिंग अगेन अगेन टू मेक इट बेटर. आर ई मीन्स अगेन, डी लर्निंग मीन्स जो गलत चीजें हैं उसको निकालना और नई सही कंसेप्ट बिठाना. तो बोलते बहुत कम लोग हैं जो डी लर्निंग और री लर्निंग करते हैं, और हमेशा दैट इज हाउ यू इवॉल्व. अच्छा री लर्निंग करें तो जो कंसेप्ट आपके और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और डी लर्निंग का तो कुछ चीजें गलत जो दिमाग में बैठी है वो निकल जाएंगी और सही चीज आएंगे. विल यू इवॉल्व और नॉट? दैट इज डी लर्निंग और री. तो इससे बोलते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं. मैंने एक स्कूल का, मेरे अपने बेटे के स्कूल का फंक्शन था, एनुअल फंक्शन, वहां पे इसके सीबीएसई के चेयरमैन आए हुए थे एंड ही वाज द चीफ गेस्ट. ही वाज सेइंग दैट इज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट फोकसिंग ऑन डी लर्निंग एंड री लर्निंग. अब बोले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि सबके साथ होता है, कुछ गलत कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाते हैं कई बार, उसे कई सारे कारण हो सकते हैं. लेकिन अगर आप डी लर्निंग रेगुलर कर रहे हैं तो क्या होगा, गलत चीज निकलती जाएगी, सही आती जाएगी, तो क्या होगा, आपका नॉलेज बेस बहुत अच्छा हो जाएगा. दूसरा, री लर्निंग कर रहे हैं तो जो आप जानते हो और बेटर होते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप इवॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिकली आप इवॉल्व करते जाएंगे. एनीवे देखिए, सो दैट इज द हाउ टू चेक दैट वेदर दिस लॉ विल अप्लाई ऑन अ पर्टिकुलर टेक ओवर नॉट. आई हैव जस्ट एक्सप्लेन दैट. तो ब्रॉड एक बात निकली कि साहब हमें एक खाली चीज चेक करना है कि टारगेट कंपनी हैज टू बी इंडियन लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट. Now, let's say A is targeting this company X Limited by way of substantial equivalence of voting right or by way of takeover. In both the cases, I have just told you that the conduct of the acquirer will be regulated by this law. Now, the question is, how does this law regulate the conduct of the acquirer? Whenever the acquirer is targeting this company, either by way of this or by way of this, broadly इनका मतलब मैंने समझा दिया. This law regulates the conduct of the acquirer in two ways. One, SEBI Takeover Code (2011) imposes following obligations on the acquirer when he is targeting the company either by way of this or by way of this. क्या obligation? Impose following obligation on whom? On the acquirer. First, open offer obligation. Open offer obligation. ये क्या होता है? See, this obligation requires that acquirer will have to make an offer to the shareholders of target company. What kind of offer? That I am ready to acquire your shares.
This offer to be made by the acquirer to the shareholders of the target company has been given a technical name called open offer obligation. Whose obligation is offer is open offer? Since it is an obligation of the acquirer to make this offer, we are called the open offer obligation. Obligation किसी acquire offer का नाम क्या? Open offer. And since it's an obligation, acquirer has to make this open offer to the shareholders of target company. That's why we are calling it the obligation of the acquirer. And this obligation is called the open offer obligation. अच्छा, इस केस में ये कंपनी के शेयरहोल्डर को एक ऑफर देगा, क्या शेयरहोल्डर पे क्या ऑफर बाइंडिंग है? नो, दे मे और मे नॉट एक्सेप्ट द ऑफर. उनकी मर्जी है कि ऑफर एक्सेप्ट करें या ना करें, दैट्स अ चॉइस. बट इसको ऑफर देना मैंडेटरी, इट हैज टू मेक द ऑफर टू द शेयरहोल्डर्स टारगेट, दैट्स ऑब्लिगेशन ऑफ द एक्वायरर. मैं उसका लॉजिक समझाऊं व्हाई. सेकंड इज कॉल्ड द डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन. Disclosure obligations. What is that? If the acquirer reaches to the certain level of shareholding, what are those levels? We'll discuss in detail. If acquirer is reaching to a certain level of shareholding in the target company, he has to make the disclosure of that fact to the company, and company in turn will disclose it to the stock exchanges. Company is the Indian listed body corporate, that the acquirer has reached to certain level of shareholding in the company. And this obligation of the acquirer is called the disclosure obligation, because you have to disclose your level of shareholding. And what is that level of shareholding? I will discuss in detail, where this obligation is required to be complied with by the acquirer. And this obligation is called the disclosure obligation. अब सवाल उठता है, सब ये सब obligation acquirer के ऊपर लगा के, what are we trying to achieve? हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं? क्या सेबी ने ये सब obligation लगा के अल्टीमेटली क्या ऑब्जेक्टिव है कि व्हाट इट इज ट्राइंग टू अचीव बाय इंपोजिंग दिस ऑब्लिगेशन ऑन द एक्वायरर? दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. आप देखिए आप. अच्छा, जब ये एक्स लिमिटेड कंपनी को टारगेट कर रहा है ईदर बाय वे ऑफ सब्सटेंशियल इक्विटी शेयर्स और बाय वे ऑफ टेक ओवर, इट मींस इन द नियर फ्यूचर कैन देयर बी मेजर चेंज इन द मैनेजमेंट एंड द प्रमोटर ऑफ द टारगेट कंपनी? अच्छा, जब ऐसा हो सकता है और ऐसे होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, जब एक उसको टारगेट कर रहा है, क्या is it possible that lot of shareholders of target company may not be interested in continuing to act as a shareholder of the target company with the change promoter, with the change management? कि साहब उनको कहीं ट्रस्ट फैक्टर नहीं है कि साहब जो नया बंदा कंपनी का प्रमोटर या मैनेजमेंट का पार्ट बनने जा रहा है, वी डोंट बिलीव दैट पर्सन, वी डोंट हैव फेथ. जो पहले से प्रमोटर है उसमें हमारा फेथ था, एंड जिसकी वजह से वी बिकेम द शेयरहोल्डर ऑफ दिस कंपनी. Now, since that particular basis is going to change, and we are not interested in continuing in this company as a shareholder with the change promoter, with the change management. अच्छा, ऐसे हालात में क्या should they be given the exit opportunity? कि भैया आपको इस कंपनी के अंदर अगर नहीं रहना, आपको नए प्रमोटर, नए मैनेजमेंट ए से परेशानी है, and you want to exit that company, should the exit opportunity be provided to the shareholders of target company or not? Yes. In order to provide the exit opportunity to the shareholders of the target company, law has imposed the obligation on the acquirer. किसके ऊपर obligation लगा दिया है? Acquirer के ऊपर. क्या? आपको open offer करना पड़ेगा और आपको disclosure. These things, open offer to be made by the acquirer and disclosure to be made by the acquirer, these things are nothing but providing the exit opportunity to the shareholders of the target company. How? अच्छा, हमने अभी बोला कि साहब अगर एक्वायरर इस कंपनी को सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर कर रहा है तो एक्वायरर को ओपन ऑफर करना पड़ेगा. व्हाट इज ओपन ऑफर? इट विल हैव टू मेक एन ऑफर टू द शेयरहोल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी दैट आई एम इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग योर शेयर. अच्छा, इट इज अप टू द शेयरहोल्डर वेदर दे वांट टू एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट, बट एक्वायरर इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू मेक दैट्स व्हाई इट इज ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन. अब एक चीज ध्यान देखो, अगर ये ऐसा ऑफर देना इसकी मजबूरी है, ऑब्लिगेशन है, और उनकी इच्छा है कि वो ऑफर एक्सेप्ट करे, क्या इज इट प्रोवाइडिंग द, अच्छा मान लिया जो लोग को नए प्रमोटर से दिक्कत है, will they accept the offer and sell their share to the acquirer? Acquirer will pay the consideration. क्या वो बंदा कंपनी से फ्री हो गया? क्या उसे एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल गई? यस. इस तरह उसे एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना है, उसके लिए एक्वायरर पे ऑब्लिगेशन लगाएगी. अगर डिस्क्लोजर से क्या होगा? जब एक्वायरर डिस्क्लोज करेगा कि मेरी होल्डिंग इतनी हो गई है, एक सर्टेन लेवल पे आ गई है, क्या इट स्टार्ट गिविंग द हिंट टू द shareholder टारगेट कमिंग इन द नियर फ्यूचर सम चेंज may happen. अच्छा, if they don't want to continue in this company as a shareholder, can they sell the share to the stock exchange? Is that company listed or unlisted? Listed. It's an Indian listed body corporate. आप वहां उसके थ्रू बेच के आप कंपनी से एग्जिट कर सकते हैं.
इसका मतलब खाली इतना फर्क है, आई कॉल दिस एज अ डायरेक्ट एग्जिट अपॉर्चुनिटी। व्हाई डायरेक्ट एग्जिट अपॉर्चुनिटी? कि डायरेक्टली एक्वायरर ही आपके शेयर एक्वायर करने के लिए ऑफर दे रहा है। ये सुनो, कहने से ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन इज द प्रोवाइडिंग द डायरेक्ट एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू हुम, शेयरहोल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी। एंड डिस्क्लोजर में क्या डायरेक्टली एक्वायरर आपके शेयर लेने तैयार है, खाली बता रहा है कि साहब मेरी होल्डिंग इतनी हो गई है। तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? व्हेन यू आर रीचिंग टू सर्टेन सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ शेयरहोल्डिंग, इट स्टार्ट गिविंग द हिंट टू द शेयरहोल्डर that in the near future some change may happen and they don't sorry, if they don't want to continue in that company as a shareholder, can they exit by selling the share through the stock exchange? तो इसका डायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट? क्या एक्वायरर यहां शेयर लेने के लिए तैयार है? नो, वो हिंट दे रहा है, इससे क्या आप निकलना चाहे निकल सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई कॉल इट द इनडायरेक्ट एग्जिट अपॉर्चुनिटी। both the obligation imposed on the acquirer by this law in this context and in this context, ultimately ensuring what? Exit opportunity to the shareholder target company. Only difference is that open offer is a direct exit opportunity and disclosure is the indirect exit opportunity. वो directly आपसे शेयर नहीं ले रहा डिस्क्लोजर में, लेकिन उसका बताना ही आपको एक आइडिया दे देगा इस आप कंपनी में हमें रहना ही नहीं रहना तो बेच दो, कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी। इज दैट क्लियर? अब देखिए आप Regulation 3, which deals with substantial acquisition shares. Regulation 4 deals with takeover. दोनों रेगुलेशन ये बोलते हैं, रेगुलेशन 3 बोलता है अगर आप कंपनी के अंदर इतने शेयर्स एक्वायर करने जा रहे हैं, सो दैट टुगेदर विद द एग्जिस्टिंग होल्डिंग इफ एनी, पता है टर्म नहीं यूज किया, सो दैट यू आर रीचिंग टू द लेवल ऑफ 25%, यू कैनॉट डू इट अनलेस यू मेक एन ओपन ऑफर एज पर द रेगुलेशन दिस लॉ। आगे ओपन ऑफर की बात है, इसका मतलब आप नहीं कर सकते, करना है तो क्या करना पड़ेगा? ओपन ऑफर करना पड़ेगा, यही बात कर रहे हैं। रेगुलेशन 4 बोलता है एन एक्वायरर कैनॉट डू द टेक ओवर द टारगेट कंपनी अनलेस ही मेक्स एन ओपन ऑफर। अगेन ओपन ऑफर की बात करा, अच्छा उन्होंने डायरेक्टली टेक ओवर टर्म यूज किया है रेगुलेशन 4 में, उसका रीजन है टेक ओवर दिस टर्म। अच्छा व्हाट इज टेक ओवर? एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल को डिफाइन कर रखा है रेगुलेशन 2 में, तो वहां पे रेगुलेशन 4 में लिखा हुआ है इफ द एक्वायरर विशेस टू एक्वायर द कंट्रोल, कंट्रोल इज डिफाइंड अंडर रेगुलेशन 2। So when we are discussing the regulation 4, can I take the help of regulation 2 for the understanding the definition of the word control? ये control को define करेगा regulation 2 में, मैं बताऊंगा control की क्या definition है। It means that regulation 4 जब पढ़ते हैं वहां क्या लिखा हुआ, if the acquirer wishes to acquire the control over the target company, he cannot do that unless he makes the open offer as per these regulation. It means वहां भी open offer की requirement आ रही है, and वहां कंट्रोल का मीनिंग कहां से उठाएंगे? रेगुलेशन नंबर 4 बिकॉज दैट इज डिफाइंड देयर, सॉरी रेगुलेशन 2 एंड दैट डिफाइंड देयर। इससे रेगुलेशन 4 में डायरेक्टली कंट्रोल वर्ड यूज किया, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल दैट इज द टेक ओवर। उन्होंने ये नहीं बोला इतने नंबर ऑफ शेयर्स या कुछ नहीं बोला, इफ यू विशिंग टू एक्वायर कंट्रोल एंड कंट्रोल इज डिफाइंड द रेगुलेशन 2 एंड दैट विल आई विल टेक द हेल्प ऑफ द सेम व्हाइल इंटरप्रेटिंग रेगुलेशन नंबर 4। क्लियर? अच्छा इससे पता लगा रेगुलेशन 3 में भी ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट है, रेगुलेशन 4 में भी, इसलिए अभी थोड़ी देर पहले आप जो पूछ रहे थे मैंने कहा चाहे वो सब्सटेंशियल एक्विजिशन हो चाहे टेक ओवर, by and large this law regulates the conduct of the acquirer in both in by and large same manner whether it is a case of substantial acquisition or the case of takeover, दोनों में ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट। इज दैट क्लियर? अब देखिए आप अल्टीमेटली ये दोनों ऑब्लिगेशन जो हम एक्वायरर पे लगा रहे हैं ये दोनों कॉन्टेक्स्ट में, और डिस्क्लोजर तो छोटी सी रिक्वायरमेंट है, मेन तो बात ये है एंड जो कि आप एक सर्टेन लेवल ऑफ शेयरहोल्डिंग पे आएंगे तो आपको ये बात डिस्क्लोज करनी है, दैट डिस्क्लोज ऑब्लिगेशन, ये मेन काम है, ये इतना आसान काम नहीं है। अच्छा आप बोल रहे हैं एक छोटे से आपको ओपन ऑफर देना है, अच्छा ओपन ऑफर में एक सवाल ही उठेगा कितने शेयर का, अगला सवाल है किस प्राइस पे, ऑफर प्राइस, क्या ऑफर प्राइस लॉ से रेगुलेट होगी? यस। कितने नंबर ऑफ शेयर का, वो लॉ से रेगुलेट होगी। टाइम फ्रेम होगा, कितने दिन में ऑफर एक्सेप्ट होगा, क्या होगा, एस्क्रो अकाउंट, मतलब इतनी सारी चीजें हैं। मतलब ओपन ऑफर कहने के लिए एक वो, बट एक्चुअली फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग द कंप्लाई, इस ओपन ऑफर के अखबारों में पब्लिक अनाउंसमेंट छपती है, अब कितने अखबार में छपेगी वो एक लंबा चौड़ा काम है। इसका था ओपन ऑफर, इसका था आप देखो जब पढ़ोगे 3-4 पढ़ने के बाद सारे रेगुलेशन ओपन ऑफर से रिलेटेड है। मैं लास्ट में आपको डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन पढ़ाऊंगा, दैट विल टेक एट द मोस्ट हाफ एन आवर। तो डिस्क्लोजर में है क्या कि आप एक सर्टेन लेवल ऑफ शेयरहोल्डिंग पहुंच गए, आपको ये बात बतानी, एक चिट्ठी तो लिखनी है, लेकिन आप जो ओपन ऑफर करेंगे मर्चेंट बैंकर भी इंगेज करना पड़ता है। एक्वायरर के बिहाफ पे सारा ओपन ऑफर कौन मैनेज करेगा? मर्चेंट बैंकर। इट मींस लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज आती है। तो मेन थिंग इज ओपन ऑफर, एंड साथ में एक छोटी सी बात और ऐड कर दी, and open offer is required both in the context substantial acquisition regulation 3 as well as takeover regulation number 4 acquisition and control, and disclosure में कुछ है नहीं, सर्टेन लेवल पे एक चिट्ठी तो लिखनी है, इसा हमारी लेवल ऑफ शेयरहोल्डिंग ये होगी बस। आप थोड़ी ऑफर दे रहे कि मैं आपके शेयर लेने के लिए तैयार हूँ, उसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि शेयरहोल्डर को एक आइडिया लग जाएगा साहब कंपनी में नियर फ्यूचर में चेंजेस आ सकते हैं,
and if they don't want to continue in that company as a shareholder, they may sell the share through the stock exchange. That's why I'm writing indirect exit opportunity. तो ultimate net result ये निकला कि साहब exit opportunity provide करना था to the shareholders of the target company. उसके point of view से obligation किसके ऊपर लगा दी? Acquirer के ऊपर लगा दी, both open offer as well as disclosure obligation. Is that clear to everyone? अब एक चीज देखिए, अगर एक्वायरर अगर शेयरहोल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी को ओपन ऑफर देता है, कुछ शेयरहोल्डर ऐसे हो सकते हैं दे डोंट हैव एनी ट्रबल विद द न्यू प्रमोटर. अच्छा, विल दे एक्सेप्ट द ऑफर? दे विल नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, दे बिकॉज दे डोंट हैव एनी ट्रबल. इसका मतलब उस कंपनी में शेयरहोल्डर रहने में उनको कोई ट्रबल नहीं है विद द चेंज प्रमोटर. इज दैट व्हाई दे विल एक्सेप्ट द ऑफर? They will continue to hold their share in the company with the change promoter because they don't have any problem with the change promoter, new promoter. लेकिन जिनको problem है, they are not comfortable with the new promoter. Will they accept the offer? And they will accept the offer. They will sell their share to the acquirer and get the money. Free हो जाएंगे कंपनी से. ये सुनो. And that is how. तो वो अब ये पता नहीं ना कौन सा shareholder नए promoter के साथ comfortable होगा, कौन सा नहीं. तो should the open offer be made to all the shareholder? Should it be made to all the shareholder? अब उसमें से हर शेयरहोल्डर को अपने अपने लिए डिसाइड करना है कि मुझे इस कंपनी में रही रहना है या रहना है. अगर रहना है तो डोंट एक्सेप्ट द ऑफर, और नहीं रहना एक्सेप्ट द ऑफर एंड सेल द शेयर टू द एक्वायरर, गेट द मनी एंड यू आर फ्री फ्रॉम द कंपनी. यू आर फ्री फ्रॉम द कंपनी. दैट्स आइडिया. अब एक चीज देखिए आप, ओवरऑल इस पूरे लॉ का अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें, सेबी टेक, मैं खाली मेरा स्ट्रक्चर पर समझा लॉ बना कैसे है. एक चीज ध्यान से देखना, मान ली ए है, इस कंपनी को टारगेट कर रहा है. अच्छा, चाहे वो फ्रेंडली हो टेक ओवर हो चाहे हॉस्टाइल. मैंने बताया फ्रेंडली टेक ओवर में क्या होता है, टारगेट कंपनी के जो पहले से प्रमोटर मैनेजमेंट है, दे कोऑपरेट विद द एक्वायरर, दे आर नॉट अगेंस्ट द टेक ओवर एंड दे आर रेडी टू अलाउ द एक्वायरर टू डू द टेक ओवर. दैट इज फ्रेंडली. हॉस्टाइल में क्या होता है, इनिशियल रिएक्शन ऑफ द टारगेट कंपनी मैनेजमेंट प्रमोटर इज वेरी नेगेटिव. दे डोंट वांट दैट टेक ओवर टू हैपन. बट अगर फाइनली जब टेक ओवर होता है तो अल्टीमेटली क्या उनका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा. लेकिन मैंने बताया जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं फ्रेंडली टेक ओवर हॉस्टाइल, इसका बेसिस क्या था, इनिशियल रिएक्शन क्या था, इनिशियली टारगेट कंपनी की मैनेजमेंट प्रमोटर ने कैसा बिहेव किया था, क्या एटीट्यूड दिखाया था, उससे पता लगेगा फ्रेंडली हॉस्टाइल. बाद में तो वो भी फ्रेंडली बने, क्या रीजन है. आप जोर जब ये थोड़ी, मैंने बताया जबरदस्ती थोड़ी कि साहब युद्ध थोड़ी हो रहा है कि उसे गर्दन काट ली हम वी हैव वॉन द वॉर, ऐसा थोड़ी हो रहा है. अल्टीमेटली उनसे बातचीत करके ही करना पड़ेगा. अच्छा, आप जो उस कंपनी के प्रमोटर है, क्या उसके शेयर भी एक्वायर करने पड़ेंगे? तो जबरदस्ती शेयर के हाथ से छीन लो गया, अल्टीमेटली बातचीत के थ्रू होगा. लेकिन इनिशियल रिएक्शन वाज नेगेटिव, लेटर ऑन तो अल्टीमेटली फ्रेंडली बनेगा. लेटर ऑन तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, फ्रेंडली बनेगा. लेकिन इनिशियल रिएक्शन नेगेटिव था, उसके कारण सब बोलते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर. बट अल्टीमेट अच्छा था, मैंने आर्सलर वाला केस बताया था. मित्तल स्टील डिड द टेक ओवर ऑफ द आर्सलर. अच्छा, मित्तल स्टील ने जब आपको प्रपोजल दिया था, आर्सलर की मैनेजमेंट बहुत नेगेटिव थी, बाद में फाइनली मान गई तो टेक ओवर हुआ. इसके बाद में तो क्या हुआ, साथ इकट्ठे बैठे भी होंगे, चाय पानी भी पिया होगा, ठीक है, ऑब्वियसली बिकॉज नाउ देयर नो हॉस्टिलिटी. हॉस्टिलिटी में थोड़ी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं. अल्टीमेटली आपको टेबल पे आना पड़ेगा, बातचीत भी करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा. लेकिन इनिशियल रिएक्शन वाज वेरी नेगेटिव एंड दैट्स व्हाई वी गिव द नेम ऑफ द हॉस्टाइल टेक ओवर. अब देखिए आप, सेबी बोल रहा है कि साहब कंपनी चाहे फ्रेंडली टेक ओवर चाहे हॉस्टाइल, अल्टीमेटली हॉस्टाइल बाद में किस में कन्वर्ट होता है, फ्रेंडली में. अगर टेक ओवर हो रहा है तो, अगर हुआ ही नहीं, उसने डिफेंसिव में जो इतने स्ट्रॉन्ग ले लिए बताया था ना कि टेक ओवर को अवॉइड ही कर देता, अलग बात है. बट क्वेश्चन है, अगर टेक ओवर होता है तो अल्टीमेटली वो फ्रेंडली बनेगा. सेबी बोलता है कि साहब एक्वायरर वो कंट्रोल एक्वायर कर रहा है या वो सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर कर रहा है, और जो टारगेट कंपनी के पहले से प्रमोटर मैनेजमेंट वो अपना कंट्रोल को डाइल्यूट कर रहे हैं, पूरा कंट्रोल पास ऑन कर रहे हैं. कैसे थे, सब्सटेंशियल एक्विजिशन में आप कुछ कंट्रोल डाइल्यूट कर रहे हैं और टेक ओवर में पूरा ही कंट्रोल किसको पास होना है, एक्वायरर. तो कैसे थे, दो लोग के बीच की बात हो रही. इसका मतलब उस चक्कर में तीसरा क्यों पीछे, एंड हु इज द थर्ड पर्सन, जनरल शेयर होल्डर द टारगेट कंपनी. बोला आप तो आपस में ट्रांजेक्शन कर लिया आपने, बट क्वेश्चन व्हाट अबाउट द अदर पर्सन हु आर आल्सो पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, वो क्यों पीछे. तो अगर वो नहीं रहना चाहता कंपनी में विद द न्यू प्रमोटर, शुड बी अलाउड द एग्जिट अपॉर्चुनिटी, नॉट. दैट्स द आइडिया. एक बताइए, जब डाइची ने मालविंदर सिंह सिविंदर सिंह को जो रेनबैक्सी के प्रमोटर थे, क्या उनको ऑफर दिया, दे वर रेडी फॉर दैट, बातचीत कर ली, नेगोशिएशन हो गया. अब इसके प्रमोट, इसका इट इज अ ट्रांजेक्शन विद टू पर्सन. On the one hand, the existing promoter of the target company, on the hand, proposed promoter of the target company. अब बाद में वही promoter बन जाएंगे. इनके भी उस चक्कर में आम शोल्डर को पीछेगा. तो सेबी बोलता है कि तुमको करना है ट्रांजेक्शन करो, हम मना नहीं कर रहे हैं. It is your business, you want to sell your stake, that's your choice. But at the same time, you have to keep in mind that it is not going against the rights of the others. And who is that other? Ordinary shareholder. उसको exit opportunity चाहिए, वो नहीं रहना चाहता. He must be provided with that.
और उसको प्रोवाइड करने के लिए ऑब्लिगेशन किस पे लगा दी? एक्वायरर के ऊपर, यू हैव टू मेक द ओपन ऑफर। तो अल्टीमेटली हमारा पर्पस एक्वायरर को रेगुलेट करना नहीं था, हमारा पर्पस क्या था? टू इंश्योर एंड प्रोवाइड द एग्जिट अपॉइंट टू हुम? टू द शेयरहोल्डर टारगेट कंपनी। टू प्रोवाइड द सेम ऑब्लिगेशन हैज बीन इम्पोज्ड ऑन द एक्वायरर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ऑब्जेक्टिव क्लियर कि साहब क्या ऑब्जेक्टिव था एंड जिसको सोच के लॉ बना रखा है। और बहुत लॉजिकल सी बात है कि भाई करना आप करते रहिए, हम मना नहीं कर रहे, पर इस चक्कर में तीसरा क्यों पिसेगा? वो और बंदे को क्यों नुकसान होगा? अगर वो तो उससे तो निकलने का मौका चाहिए तो मिलना चाहिए। हम मौका दिलवा रहे हैं, बाकी निकलना निकलना आपकी चॉइस है। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो रहिए, और दिक्कत है तो निकल जाइए। तो बोथ ऑप्शन आती है। तो एक्वायरर के ऊपर तो ऑब्लिगेशन लगा दिया, लेकिन शेयरहोल्डर के ऊपर को ऑब्लिगेशन नहीं है टू एक्सेप्ट द ऑफर। दे मे एक्सेप्ट द ऑफर, दे मे नॉट, बट एक्वायरर हैज टू मेक द ओपन ऑफर टू ऑल द शेयरहोल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दैट इज व्हाट इज द पर्पस। और एक और चीज है, क्या ये लॉ किसको बेनिफिट देने के लिए बनाया? शेयरहोल्डर ऑफ द, अभी तक उनको एग्जिट अपॉइंट देनी, क्या एक्वायरर को बेनिफिट देने के लिए बनाया? नहीं। तो कभी भी इस लॉ की इंटरप्रिटेशन एक्वायरर के बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से मत कीजिएगा। अगर आपने वो इंटरप्रिटेशन करनी शुरू कर दिया, आप सब गलत लाइन से जाने लग जाएंगे। और होता ही है कि लोग जिनको ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर है, पर्पस नहीं, कि वो यही करते हैं। कई सारे प्रोविजन ऐसे आएंगे आगे, जो एक्वायरर वो नहीं करना चाहता फिर भी करना पड़ेगा। तो कई बच्चे बोलते हैं सर ये क्या बात है, एक्वायरर डजंट वांट, और ये सेबी बोलता है मैंने उसको प्रोटेक्शन देने के लॉ नहीं बनाया। अगर एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर द टारगेट कंपनी को प्रोटेक्शन देने के लिए मुझे जो करवाना पड़ेगा मैं सब करवाऊंगा, एक्वायरर को करना पड़ेगा। तो इसके बाद आप कभी ये मत बोलना कि सर एक्वायरर को तो नुकसान होने दीजिए। अच्छा, आप बोलेंगे सर एक्वायरर को, ये गलत बात है। क्या एक्वायरर को लॉ एडवांस में नहीं पता? क्या उस ट्रांजेक्शन के अलग से सेबी उस समय लॉ बना दिया? पहले से लॉ इज इन प्लेस। इफ दिस लॉ डज नॉट सूट एनी पर्टिकुलर एक्वायरर, व्हाई आर यू टारगेटिंग एनी कंपनी? अगर आपको इतनी परेशानी कि साहब ये लॉ में कंप्लाई नहीं कर सकता, डोंट टारगेट अ कंपनी। डोंट टारगेट अ कंपनी। आप कंपनी को मत टारगेट कीजिए। किसने कोई जबरदस्ती बोला टारगेट करने के लिए? और अगर टारगेट करे तो यू मस्ट नो दैट व्हाट आर द फॉर्मेलिटी विल नीड टू कंप्लाई विद। वो आपको एडवांस से पता करना चाहिए। और आपको कोई सूट नहीं करता, डोंट टारगेट अ कंपनी। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। कोई सेबी ने एक्वायरर को प्रोटेक्ट करने की लॉ नहीं बना रखा है। किसको प्रोटेक्ट करने बना रखा है? शेयरहोल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो जरूरत पड़ेगी वो एक्वायरर के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है। तो इसलिए बोलते हैं इस लॉ की जो बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन, दिस लॉ शुड इंटरप्रेट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ हुम? Shareholder of the target company rather than the acquirer. And you start doing the beneficial interpretation from the point of acquirer, you are going in the wrong direction. And बहुत जगह लोग ये गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि पर्पस नहीं पता। क्या होता है, सीधा कंटेंट्स पढ़ते हैं। They don't know कि सेबी ने लॉ बनाया क्यों है, क्या पर्पस है, सब कुछ नहीं पता, सीधा कंटेंट्स। और ये तो मुझे लगता है बहुत ही वाहियात तरीका है पढ़ने का कोई भी सब्जेक्ट को। फर्स्ट अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ दैट सब्जेक्ट। विदाउट नोइंग द फिलॉसफी हम सब्जेक्ट पढ़ नहीं रहे, हम खाली कंटेंट को रट रहे हैं। मेरा तो स्ट्रांगली माना है हर सब्जेक्ट की पहले, मेरा अपना पर्सनल नेचर है, कोई आदमी जल्दी जल्दी कुछ बोलता है ना, मैं एंटरटेन ही नहीं करता, कुछ समझ भी नहीं आता। अरे तुमने मार्केटिंग का बहुत लोग आते हैं, वो गटर पटर क्या, वो 4-5 चीज रटर के तो बोलने जाते हैं। मैं 1% मेरे को तो बर्दाश्त ही नहीं है। क्यों? समझ में कुछ आते नहीं क्या कह रहा है। भाई आप आए हो, अगर आपको प्रोडक्ट ही बेचना है तो पहले आप प्रोडक्ट को बारे में पहले समझाओ सामने वाले को। अच्छा, वो दूसरी एक चीज मैंने देखा है, बहुत लोग क्या करते हैं, आएंगे द टर्मिनोलॉजी दे यूज, वो सेम टर्मिनोलॉजी बात करते हैं। अच्छा, आप तो उस फील्ड के हैं, यू आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट टर्मिनोलॉजी, बट कोई अदर पर्सन ही इज नॉट फ्रॉम दैट फील्ड, हाउ कैन द अदर पर्सन, तो आपको उसको उसकी भाषा में समझाना चाहिए। मतलब मार्केटिंग का एक तरीका, हम किसी से बात करते थे, मेरी बात अगर दूसरे के तक इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो रही है, तब तो वो डिसाइड करे कि साहब मेरा प्रोडक्ट वो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। मेरी बात ही सामने वाले तक नहीं पहुंच रही तो कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज में तो मैक्सिमम आंसर वही आएगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस में देखा, मैक्सिमम लोग बात ही नहीं करनी आती, वो क्या बोलते हैं, कुछ 4 लाइनें रटवारी होती है, वो वैसे बोलते रहते हैं, अजीब अजीब टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। मैं कहा भाई साहब टर्मिनोलॉजी आप कंफर्टेबल हैं। एक बार कोई ऐसे कोई बात होती, आप ये भी नहीं जानते, मुझे ऐसे बोलता, मैं कहा आप इसका मतलब क्या, बोला कि आप ये भी नहीं जानते। मैं कहा मैं लॉ के टर्म बोलूं आप जानेंगे, चुप हो गया। हर आदमी अलग अलग फील्ड से है, हर आदमी अलग अलग फील्ड से है, तुम उसकी अपने फील्ड की टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज करोगे, दैट अदर पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड। भाई एक अच्छा डॉक्टर है, पेशेंट को उसकी भाषा में समझाए, और वो हेवी मेडिकल टर्म डालने लग जाए, वो समझ में आएगा। और बीमारियों के जो आम नाम होते हैं ना, जो टेक्निकल नाम अलग होते हैं, आम नाम लोग ऐसे बोल देते हैं, और उनके टेक्निकल नाम ले रहे हैं तो आपको नाम ही समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। तो उसका काम यह कि पेशेंट को उसकी भाषा में समझाए कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कैसे ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि तुम अपनी भाषा में लगे हो, वो पेशेंट को क्या समझे। अच्छा, पेशेंट को समझ में नहीं आएगा ना, एक सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट क्रिएट हो जाएगा, पता नहीं डॉक्टर साहब मेरे साथ क्या कर रहे हैं।
एक सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट क्रिएट होता है। अच्छा, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विथ यू, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज बीइंग गिवन, एक सेंस ऑफ कंफर्ट आता है। अच्छा, ये मजाक की बात नहीं, एक्चुअली व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग समथिंग तो ट्रीटमेंट आधा तो वही हो जाता है। अच्छा, आपको एक फेथ हो कि मैं जो ट्रीटमेंट कर रहा हूं सही ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन आधी बीमारी तो दूर वैसे जाती है। अच्छा, जब फेथ नहीं होता ना तो अच्छा सा ट्रीटमेंट भी फेल हो जाता है, कारण वो काम ही नहीं करता बॉडी के, वो साइकोलॉजिकली आपको अच्छा होता है अपना हमारा बॉडी का हार्मोन सिस्टम कैसे काम करता है। इफ यू फील समथिंग गुड, आपको वैसे हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं और आपकी बॉडी में एक पॉजिटिविटी आ जाती है। एंड इफ यू फील समथिंग रॉन्ग, जैसे क्या होता ना, किसी ने बोल दिया ये क्या वाहिया से शर्ट पहन रखी है तूने। अच्छा, क्या अभी आप खुश थे, 2 मिनट में आप दुखी कैसे हो गए? हाँ, अच्छा देखे तुरंत यार पता नहीं, हम झांकने लगते हैं यार हमने ऐसे क्या पहन रखा है क्या, ठीक है, फिर एक दो लोग से पूछेंगे भी यार क्या शर्ट खराब लग रही है, तो कहीं अच्छा उसके निगेटिव हार्मोन्स और सीक्रेट होने हो जाते हैं। बोलते हैं ह्यूमन ब्रेन बड़ा अजीब सी चीज है कि भाई इसको ब्रेन को जैसे आप उसको, इसलिए बोलते हैं बंदे को तुम अच्छा नहीं बोलते पॉजिटिव माहौल में रहना चाहिए, क्योंकि क्या आप निगेटिव माहौल तो आपके बॉडी वैसे ही रिएक्शन दिखाने लग जाती है, बार बार निगेटिव बात। उस दिन एक बच्चा मुझे बोला था इस साथ तैयारी, आपकी क्लास में एक लड़की थी वो आज आई नहीं, ठीक है सर मेरी तैयारी नहीं हो रही। मैं बोला बेटा एक तो अपना एक शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई करो एक, और उन लोगों से दूर रहो जो निगेटिव है। कुछ लोगों ने कसम खा रखी अपना तो बिगाड़ेंगे सबका बिगाड़ेंगे। अच्छा तुम देखना कई लोग होते हैं मेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरी तैयारी चल रही है, अच्छा उसको तुम बोलोगे ना मेरी तैयारी ठीक चल रही है, तो ठीक चल रही है, अच्छा ठीक चल भी रहेगी उसको बुलवा देगा मुंह से, फिर 2-3 बार दो तुम्हें, हाँ यार मेरी भी ठीक नहीं चल रही, अच्छा अभी ठीक चल रही थी। तो वो निगेटिव आदमी है, उसका काम यही है खाली निगेटिविटी फैलाना। कहते हैं निगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, वो बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग होते हैं, वो अपने लिए तो दुखी हैं ये सबको दुखी करके रखते हैं। अब बहुत लोग तुम फोन करो कैसे हो, क्या बताऊं यार, पहली लाइन ये होती है, तुमने ना बहुत सारे ऐसे होते हैं पहली लाइन ये होती है भाई साहब क्यों रो रहे हो। और दूसरी बात ये जिंदगी में छोटी मोटी प्रॉब्लम सबके साथ लगी होती है, किसके साथ नहीं है, क्या मुकेश अंबानी के साथ नहीं होगी, उसके साथ भी होगी। वो सोच रहा होगा पता नहीं जियो वाला सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, वो अलग ही टेंशन में है। अच्छा उनके स्टेक्स कितने लंबे लंबे। अच्छा अगर उल्टा पड़ जाए, बीच में एक दिन मैं पढ़ा था एक आर्टिकल में को पढ़ा था कि साहब बाहर की कंपनी आ जाए अभी इंडिया में एंटर कर जाए और इससे भी कोई जबरदस्त टेक्नोलॉजी ला दे, कितना बड़ा स्टेक लगा रखा है इसने, अभी प्रॉफिटेबिलिटी आने में तो टाइम लगेगा। अच्छा क्वेश्चन ये जेस्टेशन पीरियड में कोई दूसरा बम फोड़ दे तो सोचिए इसकी क्या हालत हो जाए। ऐसा नहीं कि हर वो तो लाइफ है, बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन कितनी अच्छी लाइन बोली थी, जिंदगी में हर नया दिन एक नया संघर्ष है, एवरी न्यू डे इज अ न्यू फाइट और न्यू स्ट्रगल। ये तो चलता रहेगा, जिंदगी का पार्ट है, तो इसको लेके बैठ जाएंगे तो हम काम ही नहीं कर सकते, तो चलता रहेगा रोज। अच्छा कभी होता है 19-20 ये हुआ, कभी सुबह उठे सर दर्द हो रहा है, फॉरगेट अबाउट दैट, मूव ऑन लगा रहे बाम पे बाम रखे जा, ठीक है, माथा में पूरा रुमाल बांध के होता ना, पट्टी वट्टी बांध के, भाई आज तो कुछ काम नहीं होगा। अरे यू हैव स्टार्टेड गिविंग द नेगेटिव मैसेज टू योरसेल्फ, यार काम नहीं होगा। आप एक बार भूल जाओ कि सर दर्द हो रहा है एंड शुरू हो जाओ, देखो घंटे 2 घंटे का आपको याद भी नहीं होगा वो सर दर्द था। ये बॉडी है, बोले बॉडी ब्रेन, बोलते ब्रेन को कैसे आउटस्मार्ट करना है ये भी आर्ट है, नहीं तो ब्रेन हमेशा कई बार वो गिराएगा, नहीं ये नहीं वो नहीं, आप उसके ऊपर हावी रहो, आप उसके हावी रहो, उसको हावी मत होने दो। एनीवे सो दिस इज ऑल अबाउट दिस द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है क्या पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव है। अच्छा एक चीज बताओ, इसका पर्पस ऑब्जेक्टिव और सेक्शन 235 का पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या बहुत मैच करता है? सेक्शन 235 में हमने बोला था साहब जो ट्रांसफर ही करनी वो एक क्वार्टर था एंड इट मे गिव द ऑफ बता नोटिस। अच्छा वहां नहीं दिया तो 236 में मैंडेटरी हो जाता बताया था, और वहां दिया तो फिर 236 में नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या वहां एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसको, टू द शेयरहोल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी कौन है, ट्रांसफर करने। तो डोंट यू थिंक अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव जो सेबी टेक ओवर में नजर आ रहा है क्या वैसे अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव में कहना चाहा था, अंडर द सेक्शन 235 एंड 236 एंड मेनली 235। इस कारण से मैं 235 को हमेशा टेक ओवर के साथ पढ़ाता हूं, अनलिस्टेड करने का ये कोई अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव सेम है। कई लोग 235 को मर्जर के साथ ही पढ़ा देते हैं, लेकिन आपके स्टडी मेटल में मर्जर के साथ ही चिपका रखा है, लेकिन एक्चुअली मेरा स्ट्रांगली, मैंने और भी बहुत अच्छे लोग जो अच्छे लेवल पे बुक्स लिखते हैं उनकी बुक्स देखिए, दे डील द 235 या ओल्ड एक्ट 395 था अलॉन्ग विद टेक ओवर। तो अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव इज सेम, अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव सेम, जो इसका ऑब्जेक्टिव है इसका ऑब्जेक्टिव अब मैच करता है। अब देख लो आपके सामने एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द, कोई सामने वाला नहीं रहना चाहता, लेट दैट पर्सन एग्जिट दैट कंपनी, अब उसको मौका मिलना चाहिए। नाउ एक और चीज देखिए,
हमने बोला ये लॉ रेगुलेट किसको करता है? एक्विजिशन ऑफ substantial acquisition share, that is acquisition of substantial quantity of shares of voting right. Second, takeover. Takeover what? Acquisition of control. क्या दोनों में acquisition word common है? Acquisition of substantial quantity of share voting right. And second, acquisition of control. There is a common word called acquisition. तो acquisition का मतलब क्या है? Acquisition वैसे डिटेल में बाद में बता दूंगा, लेकिन acquisition में इन्होंने बोला हुआ है it can be direct acquisition, it can be indirect acquisition. लॉ एक्विजिशन को रेगुलेट करता है और एक्विजिशन की डेफिनेशन में दोनों कवर्ड है. इससे ज्यादा क्या लॉ डायरेक्ट एक्विजिशन को भी रेगुलेट करेगा एज वेल एज द इनडायरेक्ट, बिकॉज लॉ इज रेगुलेटिंग एक्विजिशन एंड एक्विजिशन डेफिनेशन से दैट इंक्लूड्स बोथ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट. इट मींस क्या दोनों तरह के एक्विजिशन को लॉ रेगुलेट कर रहा है, डायरेक्ट एक्विजिशन हो चाहे इनडायरेक्ट. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर ए एक्स लिमिटेड कंपनी को टारगेट कर रहा है either by way of substantial acquisition share, that is acquisition of substantial quantity share, and that acquisition may be direct as well as indirect. Similarly, targeting this company by way of takeover, that is acquisition of control, that may be direct or indirect. पहले हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं. मान लो इसी को टारगेट कर रहा है either by way of substantial acquisition share or by way of takeover, and for that reason it is acquiring the shares of this company from someone else or from the company whatever. अच्छा, इसको टारगेट करने के लिए आप इसी के शेयर्स एक्वायर करें, इससे कंट्रोल एक्वायर करें, क्या डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्वियसली द केस डायरेक्ट, बट जिसको टारगेट करना उसी के शेयर्स एक्वायर करें, उससे कंट्रोल एक्वायर करें, इट्स ऑब्वियसली केस ऑफ डायरेक्ट एक्विजिशन. यस नो, विल दिस लॉ अप्लाई? यस, एंड एक्वायरर कॉन्ट्रैक्ट विल बी रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ. नाउ आई टेक द अनदर एग्जांपल. मान ली ए इज टारगेटिंग दिस कंपनी, बट व्हेन इट इज टारगेटिंग दिस कंपनी, इट इज नॉट एक्वायरिंग द शेयर्स ऑफ दिस, रादर इट इज एक्वायरिंग द शेयर्स सम अदर कंपनी वाई लिमिटेड. अच्छा, मान ली वाई लिमिटेड होल्डिंग कंपनी एक्स लिमिटेड. अच्छा, जरूरी नहीं कि कंपनी हो, इट कैन बी एलएलपी, इट कैन बी एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, इट कैन बी पार्टनरशिप फॉर्म, कुछ भी, इट कैन बी अनदर कंपनी, कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी इंडियन बॉडी, इट कैन बी फॉरेन, कुछ भी. ये टारगेट इसको कर रहा है और उसको टारगेट करने के लिए इसके शेयर्स या कंट्रोल एक्वायर नहीं कर रहा. इट इज एक्वायरिंग द कंट्रोल ऑफ शेयर्स ऑफ सम अदर ऑर्गेनाइजेशन. द सम अदर ऑर्गेनाइजेशन मे बी कंपनी और एलएलपी और द पार्टनरशिप फॉर्म और सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता है. अच्छा, हो सकता है इन दोनों में रिलेशन ऐसा हो कि जिसके यहां पे शेयर्स एक्वायर करने या कंट्रोल एक्वायर करने की वजह से ए को यहां पे कंट्रोल मिल रहा है या ए को यहां पे सब्सटेंशियल इक्विटी शेयर मिल रहा है. मुझे बताइए इस केस में इज ए टारगेटिंग एक्स लिमिटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली. क्या इन दिस केस आल्सो दिस लॉ विल अप्लाई? इन दिस केस दिस लॉ विल अप्लाई. अच्छा, एक और चीज, व्हेन ए इज टारगेटिंग एक्स लिमिटेड इनडायरेक्टली, विल ए कंप्लाई दिस लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ द वाई लिमिटेड और एक्स लिमिटेड? एक्स लिमिटेड टारगेट कंपनी, वाई लिमिटेड नहीं. टारगेट कंपनी क्या है? अच्छा, मैंने बताया ये बाहर की हो सकती है. अगर टारगेट कंपनी बाहर की हो तो क्या लॉ लगेगा? मतलब ही नहीं है. लॉ कब लगता है? जब इंडियन लिस्टेड बॉडी को. इट मीन टारगेट वो वाई लिमिटेड को नहीं कर रहा, टारगेट इज एक्स. लेकिन वाई एक्स लिमिटेड पहुंचने के लिए किसके थ्रू जा रहा है? वाई. वाई देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन द वाई लिमिटेड एंड द एक्स लिमिटेड. तो उसके लिए वाई लिमिटेड के शेयर्स या कंट्रोल या कुछ और एक्वायर कर रहा है जिसका इंपैक्ट कहां पे आएगा? एक्स लिमिटेड पे. ही नोज दैट. And इसका मतलब he is targeting X Limited directly or indirectly? Indirectly. I hope this is clear to everyone. तो इस केस में A will have to comply with this law in respect of the shareholders of target company, that is X Limited. और डायरेक्ट वाला केस में तो कुछ है ही नहीं. इनडायरेक्ट इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर? इनडायरेक्ट क्लियर है? ठीक है. अब देखिए, आपको कुछ नहीं तो मैं आपकी एज का एग्जांपल देता हूं. मान लिया X लिमिटेड और Y लिमिटेड दो सहेली हैं और A एक्स लिमिटेड में चांस मार रहा है और वो उसकी सहेली के रूप से जा रहा है. मतलब सहेली को पटा लिया तो क्या हो सकता है? वही पटी जाएगी. तो क्या हो रहा है? डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? वाई लिमिटेड में इंटरेस्ट हो रही है, इंटरेस्ट किसमें है? एक्स लिमिटेड में. एक्चुअली ही इज रूटिंग थ्रू दैट. तो एक्चुअली ये सेम सिचुएशन है कि यहां पे एक्स लिमिटेड कंपनी में एक्चुअली टारगेट इश्यू कर रहा है, लेकिन किसके थ्रू जा रहा है? वाई लिमिटेड. अच्छा, इसमें एक एक्चुअल एग्जाम्पल लेते हैं. हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड is an Indian subsidiary of Unilever.
You all understand? The Unilever is a holding company and it's a British company. And उसकी इंडियन सब्सिडी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड. अगर कोई इसको टारगेट कर रहा है, बट उसके लिए अगर वो यूनिलीवर के शेयर्स एक्वायर कर रहा है या यूनिलीवर कंट्रोल एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, इज इट टारगेटिंग द HUL इनडायरेक्टली? Is it targeting the Hindustan Unilever Limited indirectly? Yes or no? Through the Unilever. क्या A will have to comply with the Hindustan Unilever Limited India listed body corporate? Yes or no? Is that क्या A will have to comply the provisions of SEBI code in the context of this company HUL? Why? Because it's an Indian listed body corporate. उसको ये law comply करना पड़ेगा in the context of HUL. समझ आ रहा है आपको? अब एक छोटी सी और बात देखिए. कई एक बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं बड़ा, सर मान लिया वर्ल्ड में कोई भी ए, कोई भी वो यूनिलीवर के शेयर एक्वायर कर रहा है या यूनिलीवर में कुछ कंट्रोल एक्वायर कर रहा है जिसका इंपैक्ट यहां पे आ रहा है, तो साहब उसे क्या पता कि साहब इंडिया में ऐसा कोई लॉ है नहीं है, इसका क्या? एक चीज बताओ, ये थोड़ी कोई लल्लू पंजू कोई. सोचो तुम यूनिलीवर जैसी कंपनी को टच कर रहे हो, अच्छा वहां थोड़ी कि यूनिलीवर का एक शेयर खरीद लो तो यहाँ पे इंपैक्ट आ जाएगा. Is that the aim must be buying the good number of shares, a good control over the company. उसका इम्पैक्ट यहां आ रहा है. कोई इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन कर रहा है, will have the team of the professional to guide him for the transaction or not. ऐसा थोड़ी होता है कि साहब इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन कर रहा है, पूरी टीम होती है, वो क्या करेंगे देखेंगे सर अच्छा बताइए यूनिलीवर की जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, क्या उसमें ये सब इम्पैक्ट आ रहा होगा, कंसोलिडेशन हो रखा होगा, ये सुनो तो नजर आएगा कि साहब इसमें तो इंडियन कंपनी भी इसकी सब्सिडरी है. और ये तो हम इंडियन कंपनी एग्जाम्पल ले रहे हैं, यूनिलीवर की वर्ल्ड में कितने कंट्री में सब्सिडरी है, क्या उन सारे कंट्री के लॉ देखने पड़ेंगे? आप इतनी बड़ी जाइंट को टच कर रहे हो तो उसका इंपैक्ट जितने कंट्री में आएगा उन सब कंट्री के फिर प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा. दे विल गाइड यू. तो क्यों नहीं करना पड़ेगा? जब लॉ लग रहा है तो आपको अपने, और ये कोई छोटे मोटे ट्रांजेक्शन नहीं है जो उस लेवल पे जो लोग करते हैं, तो फिर उनका पूरी टीम होती है टू गाइड देम, और उन टीम की कनेक्टिविटी वर्ल्ड वाइड होती है, वर्ल्ड वाइड. अच्छा इंडिया में जितने बड़े प्रोफेशनल फर्म्स हैं, जितने बड़े लॉ फर्म्स हैं, उनके वर्ल्ड में बड़े बड़े लॉ फर्म से कनेक्टिविटी होती है. अच्छा मान लिया एक इंडियन कोई लॉ फर्म है, जैसे कुछ भी ले लो आप, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई बड़ी कोई भी लॉ फर्म एग्जाम्पल है, आप उस लॉ फर्म के पास कोई क्लाइंट आ जाए जो MNC है, उनके डिफरेंट कंट्रीज में बिजनेस है. अच्छा कुछ ट्रांजेक्शन में उनको डिफरेंट कंट्रीज के भी एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे. अब उनके बारे में आपको हो सकता है आपकी एक्सपर्टाइज नहीं हो, कैन यू इन्वॉल्व द लॉ फर्म और सिमिलर काइंड ऑफ फर्म्स ऑफ द अदर कंट्री? उनके सब टाइप्स होते हैं, बड़े लेवल पे करना ही ऐसे पड़ता है, क्योंकि आप क्लाइंट भी आपको वैसा होता है, तो उसकी प्रॉपर सर्विस देने के लिए यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ द प्रोफेशनल्स ऑफ द कंट्री. नाउ सो आई थिंक दिस इज क्लियर. अच्छा इसमें मैं एक बात और लास्ट में ऐड कर देता हूं. वैसे यूनिलीवर इज नॉट ए इंडियन लिस्टेड बॉडी, इज अ फॉरेन कंपनी. हैड द यूनिलीवर, एक एग्जम्पशन ले लेते हैं, हैड द यूनिलीवर बीन अ इंडियन लिस्टेड कंपनी, अगर ये इंडियन लिस्टेड कंपनी होती तो मुझे बताइए क्या इस केस में एक को 2 बार टेक ओवर लॉ कंप्लाई करना पड़ता? जब ये इसके शेयर्स एक्वायर कर रहा है, कंट्रोल एक्वायर, जिसका इंपैक्ट यहां भी आ रहा है. अच्छा एक इंडियन लिस्टेड कंपनी दूसरे इंडियन लिस्टेड कंपनी की सब्सिडी हो सकती है? एकदम हो सकती है. अच्छा मान ली ये भी इंडियन लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट है, ये तो है ही है. अच्छा ये ए इसके शेयर्स एक्वायर कर रहा है या कंट्रोल एक्वायर कर रहा है, जिसका इंपैक्ट यहां आ रहा है, तो क्या इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि अभी तक हम क्यों नहीं लगाए थे यूनिलीवर के रेस्पेक्ट में लॉ? वाई? यूनिलीवर इज नॉट अ इंडियन लिस्टेड एंड इन ऑर्डर टू बी टारगेट कंपनी इट हैज टू बी इंडियन लिस्टेड. लेकिन मैंने हैड इट बीन, लेट्स से एजम्पशन ले लेते हैं, हैड इट बीन इंडियन लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट, क्या ये इसके रेस्पेक्ट में लॉ लगेगा? तो ए को क्या इसके शोल्डर को भी ओपन ऑफर देना पड़ेगा? अच्छा विल इट बी केस ऑफ डायरेक्ट एक्विजिशन और इनडायरेक्ट? डायरेक्ट, तो इसके तो आप शेयर एक्वायर कर रहे हैं और इसका इंपैक्ट यहां पे आ रहा है, तो क्या इसके शोल्डर को भी देना पड़ेगा? दैट विल बिकम द केस ऑफ इनडायरेक्ट. तो आपको दोनों के केस में करना पड़ेगा. लेकिन क्योंकि ये तो मैंने एक एजम्पशन ले लिया कि लेट द यूनिलीवर इज द इंडियन लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट, बट सिंस इट इज नॉट ए इंडियन लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट, in this case only A will have to make the compliance of the law in respect of the shoulders of HUL, not to the shoulders of Unilever, because Unilever cannot be a target company because it is not an India listed body corporate. Is that okay with everyone? तो मैंने आपको पूरे टॉपिक का इंट्रोडक्टरी पार्ट पर समझा दिया कि टॉपिक किस तरीके से कैसे संबंध है, एवरीथिंग विल डिस्कस दैट. आज इतना ही रहने देते, मैं डेफिनेशन नेक्स्ट क्लास में लूंगा, ठीक है, क्योंकि एक आध डेफिनेशन पढ़ाते पढ़ाते टाइम हो जाएगा एंड नेक्स्ट क्लास में डिस्कस अ लॉट ऑफ डेफिनेशन. लेकिन स्ट्रक्चर आज की क्लास भी आपको पूरे एक्ट का, लॉ का आपको पर्पस समझा दिया. अगली क्लास में आई विल टेक अप द डेफिनेशंस.